When is a parent born? When your world changes in a moment? Nani? Or when the moment is celebrated by all? When you start learning again? Or with a new role? Is it your child's first breath? Or is it just a feeling? Parents are born when they fulfill a responsibility. Your child's umbilical cord blood can provide protection from 80 life-threatening diseases. Keep it safe with Asia's largest stem cell bank. Cord Life. One chance, one choice. Good afternoon, everyone. Hi, I am Mangesh Mankar. Welcome you all for this online ANC class. This class is arranged for you by Thanawala Maternity Home, Vashi, in association with CordLife. CordLife is Asia's largest and the most experienced stem cell bank. Thanawala Maternity is situated in Sector 17, Vashi, Navi Mumbai, is dedicated to service for mother and child care. I thank Dr. Uday Thanawala for giving us this opportunity to interact with expecting parents and arrange this informative session for them. I work for CordLife. CordLife is a stem cell bank. In CordLife, we preserve stem cells from umbilical cord blood and umbilical cord tissue as well. CordLife started operations in 2001 in Singapore. That makes CordLife the oldest and the most experienced stem cell bank in Asia. CordLife is present in India since 2008, having services in 210 cities in India. We are financially the most stable stem cell bank. We are listed on Singapore Stock Exchange, Malaysia Stock Exchange, and also featured in Forbes list as the best under billion company. We preserve umbilical cord and umbilical cord blood, which contains potential stem cells. These stem cells are naive or new. Therefore, they are more efficacious to treat life-threatening disorders. These stem cells are 100% matching to the baby, and they have a very high percentage of matching with sibling, parents, and grandparents. These stem cells are easily collected, and there is no harm to mother or no harm to baby at the time of collection. Basically, stem cells are body's master cell or mother cell, we call it as. They have capacity to regenerate cells and tissues and differentiate into various organs and cells. This property of these stem cells is used for treatment of life-threatening disorders. You can store stem cells only at the time of birth of the baby. So the planning should start during pregnancy. So there is only one chance and one choice, that is CordLife. If you want to know more about stem cell banking through this source of umbilical cord blood and cord tissue, please call us at 9167 398895. My name is Mangesh. We will provide you free of cost presentation either online or offline as per your wish. Please take an well-informed decision after this presentation. With this, I hand over this session to Nigamja ma'am, who will speak on preparing for labor and birth. This will be followed by Swati Thoda ma'am, who will speak on breastfeeding and baby care. So whatever doubts, queries or questions that you have, please write the same in chat box. Our experts will answer the same at the end of the session. So over to you, Nigamja ma'am. You can start with your session. Thank you, Mangesh. Thank you, ma'am. Good evening, everyone. Welcome you all on behalf of Dr. Thanawala and on behalf of CordLife. So myself, Nigamaja, I'm a physiotherapist, childbirth educator and lactation counselor. So let us begin the presentation because we are going to discuss mostly about labor और लेबर में आप कैसा कैसा क्या क्या कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे. बट बिफोर दैट हाउ यू विल प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर लेबर एंड बर्थ. तो इसके लिए प्रेगनेंसी के जो लास्ट फ्यू वीक्स है या थर्ड ट्राइमेस्टर है
7th मंथ के आगे 8th मंथ से हाउ यू विल प्रिपेयर वो हम डिस्कस करते हैं. ओके, राइट. तो लेबर एंड बर्थ ये ऐसा टाइम पीरियड है तो विच इज मोर लाइक गिविंग एग्जाम. तो प्रेगनेंसी का एग्जाम होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, ऐसा ही बहुत लोग सोचते हैं. तो लेबर के अराउंड वी हैव लॉट ऑफ फियर कि वो बहुत दुखेगा क्या, पेनफुल रहेगा क्या, ऐसा फील आता है. एंड वी आर ऑल्सो एक्साइटेड एट द सेम टाइम बिकॉज यू आर गोइंग टू सी योर बेबी. सो फर्स्ट टाइम आप बेबी को देखने वाले हैं, मिलने वाले हैं, तो उसका एक्साइटमेंट भी रहता है. सो इट इज सच अ ब्यूटिफुल फेज. तो इसमें थोड़ा अच्छे प्रिपरेशन के साथ एग्जाम देने को जाएंगे तो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे. सो चलिए हम देखते हैं आप ये इंपॉर्टेंट फेज इन लाइफ के लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे. ओके, सो ये आपका थर्ड ट्राइमेस्टर है और मे बी आपका 30 वीक्स हो गया, 31 वीक्स हो गया और 35 वीक्स हो गया, जो भी है. तो ये टाइम में अपना बॉडी कैसा बदलता है थोड़ा समझ लेते हैं. तो ये आपके बेबी है. यू कैन सी दैट द बेबी इज ऑलमोस्ट ऑक्यूपाइंग द होल ऑफ योर बेली. सो बेबी ऑलमोस्ट 2.25 या 3 किलो क्या हो गया रहता है. एंड तो जैसा बेबी को अकोमोडेट करने के लिए अपना पेट का मसल ज्यादा स्ट्रेच हुआ, स्किन स्ट्रेच हुआ, थोड़ा स्ट्रेच मार्क्स भी आ गए हैं. तो ये टाइम पीरियड में व्हेन द बेबी इज ग्रोइंग अपना बेली कैसा स्ट्रेच होता है. इट इज नॉट जस्ट द स्किन, अंदर से आपके मसल्स में थोड़ा गैप पड़ जाता है. आपका पेट का मसल जो है थोड़ा हट जाते हैं, जगह बना के देते हैं बेबी के ग्रोथ के लिए. ठीक है, तो ये तो नॉर्मल है. तो यू कैन सी इधर एक गैप पड़ जाता है. पर व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज किसी किसी को आपने देखा होगा आपके फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, समटाइम्स अपने मम्मी में, एल्डरली विमेन में देखा होगा कि पेट बहुत लूज हुआ रहता है. तो डिलीवरी के बाद वो बोलते हैं मेरा पेट बहुत लूज हो गया है. तो समटाइम्स हम भी डरते हैं कि हमारा पेट ऐसा ढीला ना हो जाए या बहुत बड़ा ना हो जाए. तो इसका रीजन क्या है कि उनका पेट बहुत लूज हो गया, क्योंकि ये जो मसल्स काफी हट गए हैं तो वापस पहले जैसे नहीं आए हैं. तो वो पहले जैसा डिलीवरी के बाद आने के लिए हम अभी से कुछ कर सकते हैं. मतलब आप प्रेग्नेंट हैं, अभी बेबी अंदर है, आपके मसल स्ट्रेच हो रहे हैं, बट स्टिल यू कैन डू समथिंग जिससे आफ्टर डिलीवरी द मसल्स विल टाइटन अप वेट. राइट, सो दोज आर योर टमी एक्सरसाइजेस. तो प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में यू शुड डू सम पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइजेस जिससे आपका पेट का मसल्स का टोन थोड़ा अच्छा रहे, तो ये गैप भी आ जाए तो आफ्टर डिलीवरी अच्छे से क्लोज हो जाए. राइट, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है. राइट, ओके. सो नेक्स्ट क्या क्या एक्सरसाइज करना है. सो एक तो क्रॉल पोजीशन का एक्सरसाइज जरूरी है. आपको उसका सिग्निफिकेंस थोड़ा ही टाइम में पता चलेगा, क्योंकि क्रॉल पोजीशन एक्सरसाइज से बेबी सही पोजीशन में आ जाता है डिलीवरी के लिए. सो क्रॉल पोजीशन एक्सरसाइज हम डेफिनेटली करेंगे. सो वी विल सी हाउ यू विल डू दोज थिंग्स एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, वो भी और थोड़ा इलेबोरेटली देखेंगे. वी शुड ऑल्सो बी डूइंग कीगल एक्सरसाइज. तो कीगल एक्सरसाइज मतलब जो अपने नीचे का मसल्स, आपका यूरिन पैसेज, वजाइनल पैसेज में मसल्स है, वो मसल्स को हमको वर्क करना है प्रेगनेंसी में. क्योंकि जैसा आपका थर्ड ट्राइमेस्टर में देखेंगे तो वो मसल्स थोड़ा वीक रह सकता है. तो किसी किसी को खांसी करेंगे, छींकेंगे तो थोड़ा यूरिन लीक होने का डिफिकल्टी हो सकती है. तो ये मसल्स को स्ट्रांग रखने से हम अपने आप को इससे बचा सकते हैं एंड इट विल गेट योर मसल स्ट्रॉन्गर एंड बेबी इज ऑल्सो गोइंग टू कम आउट थ्रू दिस मसल ओनली. वजाइनल पैसेज से बाहर आएगा, ये मसल को स्ट्रेच करेगा. सो स्ट्रॉन्ग मसल रहता है तो स्ट्रेच को अच्छे से विथस्टैंड करेगा, है ना. तो वो एक्सरसाइजेस भी करना बहुत जरूरी है. राइट, सो एक तो क्रॉल पोजीशन का एक्सरसाइज, abdominal exercise, Kegel exercise. Another important exercise is to get some flexibility.
तो बर्थ के लिए हम सबको चाहिए, मालूम है कि पेल्विस में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, वो फ्लेक्सिबिलिटी के एक्सरसाइजेस भी हमको करना चाहिए। जैसे कि ये लेडी एक पैर को स्ट्रेच करके कर रहे हैं, इससे इनर थाइज में स्ट्रेच होता है। जो बटरफ्लाई पोजीशन हम सबको मालूम है, इसमें अच्छे से फ्लेक्सिबिलिटी आती है इनर थाइज में, पेल्विक एरिया में। दीज आर ऑल वेरी वैल्यूएबल टू डू राइट नाउ। ओके, ऑल राइट, सो नाउ वी नो दैट एक्सरसाइजेस करनी है। सो डोंट थिंक दैट अभी थर्ड ट्राइमेस्टर आ गया और मे बी यू आर इन योर 9th मंथ ऑल्सो, ये टाइम में ठीक है मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी है अभी, ऐसा मत सोचिएगा। वी हैव टू एक्सरसाइज, राइट? जितना भी टाइम है अभी आपके पास, उसमें एक्सरसाइज करने से यू विल गेट बेनिफिट। ओके, नाउ लेट अस थिंक अबाउट बर्थ। तो लेबर हम सबको चाहिए ना कि वजाइनल बर्थ हो, सो दैट इज व्हाट वी ऑल वांट, राइट? पर वजाइनल बर्थ के लिए देर आर सम कंडीशंस या फिर प्री रिक्वेसिट्स बोलेंगे कि ये सब कंडीशंस होगा तभी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। वो कौन सा है? तो पहला है कि बेबी का पोजीशन, तो हमको ये पोजीशन में ध्यान देना है। तो बेबी हेड डाउन पोजीशन में रहना चाहिए। तो ये पोजीशन में रहेगा तब भी वजाइनल बर्थ पॉसिबल है। अगर बेबी बॉटम्स डाउन है या बेबी आड़ा है, ऐसा ये कंडीशंस में वजाइनल बर्थ का पॉसिबिलिटी कम रहता है। सी सेक्शन इज अ सेफर मेथड ऑफ बर्थ, ठीक है? तो हमको चाहिए कि बच्चे को हेड डाउन पोजीशन में आना चाहिए। तो अगर बेबी का हेल्थ अच्छा होना चाहिए, आपका भी हेल्थ अच्छा होना चाहिए, दीज आर ऑल अदर फैक्टर्स, राइट? तो डॉक्टर जब भी आप सोनोग्राफी कराते हैं और आपको टाइम टू टाइम जब भी चेकअप होता है, तो डॉक्टर विल लुक एट ऑल दीज थिंग्स कि आपका बीपी ठीक है कि नहीं, शुगर लेवल्स ठीक है कि नहीं, आपका वेट गेन एडिक्वेट है कि नहीं, और बेबी का ब्रीदिंग कैसा है अंदर, और अंदर का पानी का मात्रा सही है कि नहीं, और बेबी का ग्रोथ सही है। ऑल दीज फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट, right? And along with this, the position of the baby is also important. The next thing is, ये हमको ध्यान में आता है somewhere in the 9th month। अगर आप ऑलरेडी 9th month में हैं, तो मेरा बेबी हेड डाउन पोजीशन में भी है अभी, तो मुझे पक्का नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, ऐसा अगर आप पूछ रहे हैं, तो नाउ दिस इज वन मोर थिंग जो हमको ध्यान में रखना है कि अभी हमको चाहिए बेबी पेल्विस में जाके फिट होना चाहिए, एंगेज होना बोलते हैं। मतलब ये जो व्हाइट पोर्शन जो है दैट इज दी पेल्विस, आपके कमर की हड्डी है, और इधर आपका बेबी है, राइट? तो बेबी का हेड डाउन पोजीशन में ही है, पर वो हेड जाके वो पेल्विस के अंदर फिट होना चाहिए। ये जब भी फिट होगा तभी हमको वजाइनल बर्थ का पॉसिबिलिटी बढ़ता है। सो वजाइनल बर्थ का पॉसिबिलिटी बढ़ाने के लिए बेबी का हेड जाके पेल्विस में एंगेज होना चाहिए। तो ये एंट्री पॉइंट है बेबी का पेल्विस के अंदर। एंट्री में बराबर फिट होगा तभी बर्थ के टाइम बेबी पेल्विस से बाहर आ सकता है। तो ये एंगेजमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस विल हैपन एनी टाइम बिटवीन 36-37 वीक्स से लेके डिलीवरी के 2-3 दिन के पहले भी एंगेजमेंट हो सकता है, राइट? तो ये एंगेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी ये तो फिर आप बोलेंगे तो एंगेज कराते हैं बेबी को, 9th मंथ हो गया, तो व्हाट कैन वी डू टू हेल्प द बेबी टू एंगेज इनटू द पेल्विस, है ना? तो ये बेबी का हेड जाके पेल्विस में बैठेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए बोलते हैं ऑप्टिमल फीटल पोजिशनिंग। अपना डेली कैसा हम बैठते हैं, कैसा उठते हैं, उससे हमको बहुत फायदा होता है बेबी का हेड एंगेज करने के लिए। पहले के टाइम में बोलते थे ना, प्रेग्नेंट लेडीज को स्ट्रेट बैठना है, गोल करके नहीं बैठना है, तो जमीन पे भी बैठने को मना करेंगे, बोलेंगे पाट के ऊपर बैठो, मतलब कोई हाइट में बैठो। सो दैट इज ट्रू टू सम एक्सटेंट, बिकॉज उससे पॉस्चर सीधा होता है। सो अदर वेज ऑफ कीपिंग द पॉस्चर स्ट्रेट, जैसे कि ये ऐसा सोफा में नहीं बैठना,
इंस्टेड ऑफ सिटिंग ऑन द सोफा, मदर कैन सिट ऑन अ बॉल, और ऐसा डाइनिंग चेयर में बैठ सकते हैं, थोड़ा बॉडी आगे लीन करके बैठ सकते हैं, जैसे कि चेयर में बैठे हैं, डाइनिंग चेयर में बैठे हैं, टेबल में हाथ रख के लीन करके बैठ सकते हैं। अगर बर्थ बॉल है तो बॉल भी यूज कर सकते हैं, पर ऐसा सब कंपलसरी नहीं है। तो चेयर में बैठ के टेबल में लीन कर सकते हैं, खड़े रहेंगे तो पॉस्चर को स्ट्रेट रख सकते हैं। ये सबसे आपका पॉस्चर से ऐसा सही होता है कि बेबी का डायरेक्शन बराबर पेल्विस के अंदर बेबी को लेके जाता है, तो एंगेजमेंट इजीली होगा, राइट? ओके, और भी हम कुछ कर सकते हैं। बहुत लोग आपको एडवाइस देते हैं ना, तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या करना है। तो these are some of the things which are usually prescribed by midwives. तो जिससे जो नॉर्मल डिलीवरी ही कराते हैं, जो सी सेक्शन का ऑप्शन इधर नहीं है तो नॉर्मल डिलीवरी कराना है, तो मदर्स क्या करते हैं जिससे उनको नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो एक तो डेली वॉकिंग, पौना घंटा तो आप वॉकिंग कीजिए। अभी घर के अंदर भी जा सकते हैं, चल सकते हैं, अगर बाहर जाना अभी सेफ नहीं है तो घर के अंदर भी चल सकते हैं, दैट इज वन थिंग। डेली आपको क्रॉल पोजीशन में रुकना है। तो ये क्रॉल पोजीशन में रुकने से क्या फायदा होता है, हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया ना। तो प्रेगनेंसी में 3rd ट्राइमेस्टर में क्रॉल पोजीशन में आपको एक्सरसाइज करनी है। तो इससे क्या बेनिफिट होता है, बेबी पोजीशन एडजस्ट कर लेता है। तो पोजीशन एडजस्ट करके सही पोजीशन में आता है कि बराबर पेल्विस के अंदर फिट होता है। और हम लोग ने अभी डिस्कस किया कि हेड डाउन पोजीशन सिर्फ आएगा तो काफी नहीं है, बेबी को हेड एंगेज होना चाहिए लेबर के पहले। तो ये हेड एंगेज होने के लिए क्रॉल पोजीशन से बहुत बेनिफिट मिलता है। तो दैट इज वाई वी हैव टू टेक एटलीस्ट 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर। दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बेबी थोड़ा पोजीशन चेंज करेगा, थोड़ा हिलेगा, तभी वो अपने आप को एडजस्ट करके सही पोजीशन में लाएगा। ठीक है, तो ये क्रॉल पोजीशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सम पीपल कैन ऑल्सो डू स्क्वाटिंग एंड डक वॉकिंग। डक वॉकिंग इज नथिंग बट स्क्वाटिंग करके ही थोड़ा चलना, मतलब ऐसा ही पैर में बैठे हैं और ऐसा ही थोड़ा थोड़ा आगे जाने को कोशिश करेंगे। आप ये सब बहुत अपने आप को बहुत मुश्किल से मत कराइए, अगर आप आराम से कर सकते हैं तो करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको नहीं होता है स्क्वाटिंग से, मुझे आदत नहीं है, तो डोंट वरी। तो इसमें दिखाया है, देखो, एक छोटा स्टूल में आप बैठ सकते हैं, 5 मिनट तक बैठ सकते हैं। अगर आप स्क्वाटिंग करते हैं तो सिर्फ 1 मिनट करेंगे, बस हो गया। आप स्क्वाटिंग करके वापस खड़ा रहना वैसा नहीं करेंगे, सिर्फ बैठे रहेंगे 1 मिनट के लिए स्क्वाटिंग में। अगर आपके घर में इंडियन टॉयलेट है, वो इंडियन टॉयलेट में आपको बैठने की आदत है, कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये सब हम कभी से स्टार्ट करेंगे, ओनली इन द 9th मंथ। वॉकिंग तो पहले से ही करना है, पर जो डिलीवरी नॉर्मल होने के लिए जो आपको वॉकिंग की हेल्प लगती है ना, तो 36 वीक्स के आगे भी आपको चलना है, वो इधर का मतलब है। अब ये मत सोचना कि अभी वॉकिंग नहीं करनी है, 9th मंथ से ही करनी है। ये जो स्क्वाटिंग जो है वो ही आप 36 वीक्स से करेंगे। ठीक है, क्रॉल पोजीशन का एक्सरसाइज भी हम पहले से करेंगे। हाँ, तो प्रेगनेंसी में आप कर सकते हैं, पर बहुत टाइम हमारा क्या होता है, हम जैसा 9वां महीना लगता है हम सोचते हैं कि नहीं नहीं बहुत सारे एक्सरसाइज नहीं चाहिए, सब छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं, वॉकिंग भी जरूरी है, क्रॉल पोजीशन भी जरूरी है, उसके अलावा आप स्क्वाटिंग ऐड करेंगे। ठीक है, ओके। तो जब भी आपका ड्यू डेट नजदीक आने वाला है, along with exercises you will also do some things जिससे अपना बॉडी रिलैक्स हो जाए, जैसे कि मसाज करके लेना। हाँ, तो फुट मसाज करके लेना, कि बहुत सारे घरों में जो अभी पार्लर में जाके हम लोग करते हैं ना, पार्लर में जाते हैं या स्पा में जाते हैं, पर अभी फिलहाल ये टाइम पीरियड में इट इज नॉट सेफ टू गो। तो आप खुद आपके मम्मी को बोल सकते हैं, हस्बैंड को बोल सकते हैं, बैक को थोड़ा मसाज करने के लिए, फुट को मसाज करने के लिए, या फिर कुछ मसाजर है आपके पास वो यूज कर सकते हो। इससे क्या बेनिफिट होगा,
तो इससे हम रिलैक्स होते हैं। तो मसाज से वी ऑल नो इट इज वेरी रिलैक्सिंग। ऐसा रिलैक्सिंग होने से क्या होता है, लेबर के टाइम में एक हार्मोन आता है, ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। ये हार्मोन के वजह से ही लेबर आगे बढ़ता है, तभी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस अच्छे आते हैं, राइट। तो जब भी हम रिलैक्स रहते हैं, हमारा बॉडी नेचुरली ये ऑक्सीटोसिन ज्यादा रिलीज करता है, तो लेबर अपने से स्टार्ट होने के लिए अच्छा है, राइट। सो दिस यू कैन डू 2 weeks बिफोर योर ड्यू डेट। तो ऑल्टरनेट डेज आप करके ले सकते हैं मसाज, कि आप बॉडी रिलैक्स रहे, बॉडी में ऑक्सीटोसिन का मात्रा बढ़ जाए। ओके, तो अभी आप एकदम तैयार हैं लेबर के लिए, एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, क्रॉल पोजीशन कर रहे हैं, इससे बेबी सही पोजीशन में आएगा। यू आर ऑल्सो डूइंग द करेक्ट पोजीशन, ऑप्टिमल फीटल पोजीशनिंग, स्ट्रेट बैठते हैं, ऐसा आगे की तरफ लीन करते हैं, इससे बेबी का हेड अच्छे से एंगेज हो जाएगा। वॉकिंग करेंगे, स्क्वाटिंग कर सकते हैं, 9th मंथ में है तो ये सबसे वी आर हेल्पिंग द बेबी टू एंगेज इनटू द पेल्विस। और अभी हमको नेक्स्ट क्या करना है, वी वांट टू नो, लेबर स्टार्ट होगा, मेरे को पता होना चाहिए, कैसा पता चलेगा? दीज आर सम ऑफ द साइंस। नेस्टिंग अर्ज क्या है? नेस्टिंग अर्ज इज नथिंग बट आपको सडनली एनर्जी लगता है बहुत साफ सफाई करने की, ऐसा ऐसा बहुत लगता है कि मेरे पास बहुत ताकत है, मैं सब साफ करूं, तो क्लीन करने के लिए जाते हैं। तो ये लेबर आने के थोड़े दिन पहले रह सकता है, कि हमेशा हमको थोड़ा सुस्ती होती है ना, अभी लास्ट फ्यू वीक्स में, ये टाइम में सडनली एनर्जी आता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा बॉडी डिलीवरी के लिए रेडी हो रहा है, कि अब थोड़े दिन में अपना लेबर स्टार्ट हो सकता है। दूसरा है लाइटनिंग, मतलब जैसा बेबी का हेड एंगेज हो जाता है, अपना पेट जो ऊपर तक भरा हुआ है वो थोड़ा नीचे आता है, क्योंकि बेबी थोड़ा नीचे आ गया है, पेल्विस के अंदर जाके बैठ गया है, तो ऊपर से थोड़ा हल्का फील होता है। तीसरा जो है प्री लेबर कॉन्ट्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं फॉल्स पेन। तो बहुत लेडीज को होता है कि रात को ऐसा लेबर के जैसा रुक रुक के थोड़ा पेन आता है, तो उनको परेशानी होती है, रात में सोने को नहीं होता है, फिर मम्मी कुछ गर्म पानी देते हैं, जीरा वाला पानी देते हैं, या बैक को थोड़ा सेक के देते हैं, उसके बाद वो सब खत्म हो जाता है। तो ये लेबर नहीं है, पर इसको बोलते हैं प्री लेबर कॉन्ट्रैक्शंस, क्योंकि यूट्रस प्रैक्टिस कर रहा है। और इससे क्या होता है, जो यूट्रस का मुंह, जिसको सर्विक्स बोलते हैं मेडिकली, वो और स्ट्रेच होता है, पतला होता है, और अच्छे से खींच के रेडी होता है। हाँ, इट इज लाइक प्रिपेयरिंग। तो अपना थैली का मुंह जो है वो भी रेडी होता है ओपन अप होने के लिए। ये फॉल्स लेबर से थैली का मुंह खुलने के लिए तैयार हो रहा है, राइट। तो ये सब फायदेमंद होते हैं, क्योंकि आपको लेबर में कम टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तो फायदेमंद है ना। यस, एंड यू मे गेट सम ब्राउनिश डिस्चार्ज। सो ये सब जो सर्विक्स जो स्ट्रेच होते हैं, जो थैली का मुंह थोड़ा स्ट्रेच होता है, तो तभी देयर कैन बी स्मॉल ब्लीडिंग एज इट इज गेटिंग स्ट्रेच, वो ऐसा ब्राउनिश डिस्चार्ज में दिखता है। सो दीज आर ऑल गुड साइंस दैट अभी 1-2 हफ्ते में मेरा लेबर स्टार्ट हो जाएगा। ओके ओके, जैसा लेबर स्टार्ट होता है हम पहचानने को होना चाहिए, राइट। तो ये सब तो प्री लेबर साइंस है, मतलब अभी थोड़ा दिन में लेबर आ रहा है हमको बताता है। जब भी एक्चुअली लेबर आता है, यू विल गेट 3 स्पेसिफिक साइंस। जो पहला है शो। शो का मतलब क्या है, आपको म्यूकस जाता है, मतलब एक चम्मच जितना म्यूकस निकलता है, उसमें थोड़ा सा ब्लड का स्ट्रीक दिखते हैं। ओके, तो जो थैली के मुंह हम लोग ने देखा ना, इट इज स्लोली गेटिंग स्ट्रेच्ड, इट इज ओपनिंग अप। जैसा वो ओपन अप हो रहा है, तो उसमें यूट्रस को प्रोटेक्ट करने के लिए, बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए देयर इज अ प्लग ऑफ म्यूकस, कि कुछ भी इंफेक्शन नहीं चला जाए। तो वो जो म्यूकस जो है वो लूजन होके बाहर आ जाता है, तो इसको बोलते हैं शो, राइट। तो दूसरा जो साइन क्या है,
देयर इज लीकिंग ऑफ द बैग ऑफ वाटर। जो बेबी तो हमको मालूम है ना पानी में तैर रहा है अंदर, ये पानी को एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, और ये एमनियोटिक फ्लूइड लीक होने को चालू होता है, राइट। सो दिस इज अनदर साइन। ये जब भी लीक होता है हमको कैसा मालूम पड़ेगा? यू फील दैट अपना अंडर पैंट वेट हो रहा है। अगर ज्यादा होता है अपना पूरा ड्रेस गीला हो जाता है, वो तो एकदम क्लियरली पता चलता है। पर कभी कभी थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है, ऐसा लगता है कि मेरे को बार बार यूरिन पास करने को मन कर रहा है, पर ऐसा यूरिन नहीं जाता है बार बार, घड़ी घड़ी आधा घंटे में 3-4 बार हम थोड़ा ही जाएंगे यूरिन के लिए। तो अगर आपको लगता है पानी पानी कुछ निकल रहा है, आपको यही डाउट आना चाहिए कि amniotic फ्लूइड लीक कर रहा है, ठीक है। अनदर साइन इज द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, इसको हम लेबर पेन बोलते हैं। तो अपना पेट टाइट होता है, यू फील लाइक पीरियड्स के जैसा पेन आता है, राइट। अगर आपने पेट को टच किया तो किसी किसी को पेट भी हल्के से कड़क लगता है, हमेशा नहीं रहता है, थोड़ा टाइम रहता है। बट वॉट यू विल मेजरली सी इज पीरियड्स के जैसा एकदम लोअर बेली में पेन आ सकता है, और इट कैन हैपन ऑन द लो बैक ऑल्सो। सबको पेट में नहीं दुखेगा, किसी किसी को लो बैक में दुखेगा। तो जिनको बैक में पेन आता है उनको लगता है कि ये लेबर नहीं है, क्योंकि हम यूजुअली लेबर का सोचते हैं पेट का। पर अगर बैक में पेन आ रहा है, वो भी रुक रुक के आ रहा है, एंड इट इज स्लोली इंक्रीजिंग, तो इट कुड बी लेबर, ठीक है। सो आप ये मत सोचिए कि मेरा बैक पेन ही हो रहा है। तो जब भी रुक रुक के आ रहा है, it is not a continuous one, it is coming and going, and it is happening on the back, then it could be labor pain and you need to talk to your doctor, right? Okay, तो हमको अभी पहचानने को आ गया है कि लेबर है, तो कैसा पहचानेंगे? पर हॉस्पिटल कभी जाना है, राइट? अगर अपना एमनियोटिक फ्लूइड लीक होता है 2 घंटे से 4 घंटे के अंदर आप हॉस्पिटल पहुंच जाइए, राइट। अगर लीकिंग नहीं होता है, एमनियोटिक फ्लूइड इज नॉट लीकिंग, तो हमको बहुत जल्दी नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे? बहुत जल्दी हॉस्पिटल में जाके नहीं बैठेंगे, राइट। तो पहला कॉन्ट्रैक्शन आया या 3-4 बार कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, तो फटाफट हम हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे। तो हमको सिर्फ मालूम कर लेना चाहिए कि हाँ शायद ये लेबर है, ये फॉल्स लेबर भी हो सकता है। तो हमको कैसा मालूम पड़ेगा? थोड़ा टाइम रुकना है, 3-4 घंटे रुक के देखो क्या होता है। तो अगर एक्चुअली लेबर है तो धीरे धीरे पेन बढ़ता है, मतलब पहले हल्का हल्का दूर दूर जो होता है, तो नजदीक नजदीक आने लगते हैं, एंड दे स्टार्ट बिकमिंग बिगर एंड स्ट्रॉन्गर। मतलब व्हेन दे आर कमिंग 30 सेकेंड्स, एक एक कॉन्ट्रैक्शन जो है, अगर आधा मिनट तक कॉन्ट्रैक्शन आता है और 5 मिनट या 10 मिनट के अंतर में एक एक पेन आ रहा है, तो आप हॉस्पिटल को निकल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल डिसाइड, क्योंकि लेबर में काफी टाइम जाता है, कभी कभी एक पूरा दिन हल्का हल्का पेन रहता है, बहुत जल्दी जाएंगे आप बोर हो जाएंगे हॉस्पिटल में। तो ये सेफ टाइम है। तो आपको हॉस्पिटल में जाते ही डिलीवरी नहीं होगी, उसके बाद भी काफी टाइम लगेगा लेबर के लिए, सो यू डोंट नीड टू गेट वरीड, ओके। तो जब भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं, क्या खा के जाएं, क्या पी के जाएं, राइट। तो बहुत फैमिलीज में ऐसा कुछ खास खाना देते हैं कि ये खा के जाओ, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। अगर आपका लीकिंग हो रहा है, हाँ तो लीकिंग हो रहा है, तो हमको तो मालूम है, तो 2 से 4 घंटे के अंदर हमको हॉस्पिटल जाना है। अगर पेन भी नहीं रहा तो भी हमको हॉस्पिटल जाना है, वेट नहीं करना है पेन आने के लिए। तो ऐसे टाइम पे हमको मालूम नहीं है कि अभी पेन भी नहीं आ रहा है, वी डोंट नो कि बेबी का हार्ट बीट कैसा है, वजाइनल बर्थ होगा, सी सेक्शन होगा, वी डोंट नो। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप कुछ खा के मत जाइएगा, ठीक है। क्योंकि अगर डॉक्टर चेक करते हैं, अगर डॉक्टर को लगता है कि बेबी को हार्ट बीट वगैरह कम होता है, सी सेक्शन वगैरह करने की जरूरत पड़ती है, तो हमारा पेट खाली चाहिए, राइट। तो टू बी ऑन द सेफर साइड, especially when there is leaking, तभी
हॉस्पिटल जाने के पहले कुछ खा के मत जाओ। एक बार डॉक्टर देखने दो, सब अच्छा है बताने दो, उसके बाद बोलेंगे कि हाँ अभी खा सकते हैं, तभी आपको जो भी खिलाना है खिला सकते हैं। और जब भी हम प्रेग्नेंट लेडीज को लेबर के टाइम में क्या खिलाएंगे, उनको खिलाना है इजीली हजम होने वाले खाने, जैसे कि रोटी में जैम डाल के या हनी डाल के दे सकते हैं, चावल दाल चावल खा सकते हैं, दही चावल खा सकते हैं, या ब्रेड सैंडविच खा सकते हैं, जैम वाले सैंडविच खा सकते हैं, जिसमें क्विकली एनर्जी आ जाए। तो जैसा वो फ्राइड आइटम्स है, पूरी है, समोसे है, स्पाइसी फूड है, कचौरी है, वो सब वो टाइम में नहीं खाएंगे। ठीक है, मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट ज्यादा नहीं खाएंगे, दूध हजम नहीं होता है जल्दी, इंस्टेंट छाछ दे सकते हैं या फिर जूस वगैरह दे सकते हैं जिसमें एनर्जी आ जाती है। तो हमको आइडिया आ गया कि लेबर को कैसा पहचानना है और कभी हॉस्पिटल जाना है। तो लेबर में होता क्या है, तो लेबर के टाइम में 3 स्टेजेस रहता है। तो उसमें पहले 2 स्टेजेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, थर्ड स्टेज डॉक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको ये तीनों स्टेज के बारे में मालूम होना चाहिए। पहले स्टेज में क्या होता है, हर टाइम यूट्रस काम करता है, टाइट होता है, मतलब अपने को पेन आ रहा है। हम तो सोच रहे हैं अरे बहुत दुख रहा है लेबर में, पर यूट्रस बोल रहा है मैं बहुत जोर से काम कर रहा हूं, राइट। तो यूट्रस बहुत मेहनत से काम कर रहा है, वो हमको पेन जैसा फील हो रहा है। तो ये पेन अच्छा है कि नहीं, बहुत अच्छा है ना, क्योंकि ये यूट्रस का मेहनत है टू पुश द बेबी इनटू द बर्थ कैनल पैसेज। तो यूट्रस ही काम कर सकता है, वही बेबी को नीचे ढकेल सकता है ताकि बेबी बाहर आ सके। तो ये थॉट से हमको देखना है कि ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, मेरे को बहुत पेन नहीं है, थोड़ा पेन तो रहेगा, इट विल बी पेनफुल, पर व्हेन यू थिंक दैट दिस इज फॉर गुड, जैसा हम जिम में वर्कआउट करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर वी डोंट क्राई, राइट। द सेम वे लेबर में यूट्रस बहुत मेहनत कर रहा है, तो हमको रोने की जरूरत नहीं, राइट। तो जब भी यूट्रस मेहनत करता है, पुश कर रहा है, अपना थैली का मुंह है तभी खुलता है, ऊपर से पुश करता है, नीचे से थैली का मुंह धीरे धीरे खुलता जाएगा। दैट इज हाउ द माउथ ऑफ द यूट्रस विल वाइडन, ताकि बच्चे का हेड बाहर आ सके। इसमें एक अर्ली स्टेज रहता है, एक्टिव स्टेज भी रहता है। तो शुरुआत में जब भी छोटे छोटे पेन ही आ रहे हैं, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्शन ही है, वो अर्ली स्टेज है। जब भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, छोटा कॉन्ट्रैक्शन क्या है, बड़ा कॉन्ट्रैक्शन क्या है, छोटा मतलब 30 सेकेंड्स छोटा है, बड़ा क्या है 40 सेकेंड से लेके 1 या 1.25 मिनट तक जो जाता है वो बड़े कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि जिसको छोटा कॉन्ट्रैक्शन हम बोलेंगे, somebody else will say अरे बाप रे बहुत ज्यादा है, तो हमको टाइम का अंदाज से कैलकुलेशन, छोटा कॉन्ट्रैक्शन मीन्स 30 सेकेंड्स, बड़ा कॉन्ट्रैक्शन मीन्स 40 सेकेंड्स टू 1.25 मिनट, राइट। तो जैसा धीरे धीरे अपना सर्विक्स का मुंह खुलता है, पूरा खुल गया है, तभी यू फील लाइक प्रेशर देने को मन करता है। तो ये टाइम से चालू होता है अपना सेकेंड स्टेज। ये स्टेज में हमको पेन खत्म हो जाता है, यूट्रस जो पुश करता है अपने सर्विक्स तो पूरा खुल गया है, तो देयर इज नो मोर ओपनिंग इज रिक्वायर्ड, तो पेन नहीं रहता है, पर हमको फील होता है जोर से प्रेशर देने के जैसा, प्रेशर इनवॉलेंटरीली आप प्रेशर दे रहे हैं। तो तभी आप डिलीवरी रूम में रहते हैं, आपके साथ डॉक्टर रहेंगे, नर्स रहेंगे, पीडियाट्रिशियन रहेंगे, और आपका बर्थ होता है, डिलीवरी होती है। तो ये स्टेज में भी यूट्रस इज कॉन्ट्रैक्टिंग, बट ये स्टेज में आपको पेन इज नॉट देयर, यू फील लाइक पुशिंग द बेबी आउटसाइड, राइट। सो डॉक्टर भी गाइड करते हैं, बेबी इज डिलीवर्ड एंड देन द बेबी इज क्राइंग, पीडियाट्रिशियन बेबी को लेते हैं एंड बेबी को हैंडल करते हैं। तो ये बेबी का बर्थ होने के बाद थर्ड स्टेज आता है। तो यही टाइम में अपने लिए तो कुछ नहीं, यू आर रिलैक्सिंग बिकॉज डिलीवरी हो गया है, पर डॉक्टर के लिए इंपॉर्टेंट स्टेज है क्योंकि प्लेसेंटा बाहर आता है। तो बेबी का नेवल में अम्बिलिकल कॉर्ड है,
उसका दूसरा एंड जो है, जो हमारे बॉडी के साथ कनेक्ट हुआ है, तो दैट इज द प्लेसेंटा। तो ये प्लेसेंटा यूट्रस के वॉल में अटैच हुआ रहता है, राइट। तो ये बेबी बाहर आने के बाद कॉर्ड को क्लैंप करके कट कर दिया, तो बेबी पीडियाट्रिशियन के पास, तो कॉर्ड क्लैंप किया हुआ कॉर्ड का दूसरा एंड इज अटैच टू द प्लेसेंटा, तो वो प्लेसेंटा निकल के बाहर आ जाता है, तो तभी थोड़ा ब्लीडिंग रहता है। तो ये टाइम डॉक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूट्रस कंटिन्यूज टू कॉन्ट्रैक्ट, इट शुड कॉन्ट्रैक्ट, तभी ये ब्लीडिंग जल्दी से स्टॉप होता है, राइट। सो डॉक्टर ये बहुत ध्यान से देखते हैं कि यूट्रस पूरी तरह से वो प्लेसेंटा निकल जाए और यूट्रस वापस श्रिंक हो जाए, एंड देन द डॉक्टर मे डू द सूचरिंग, राइट। ओके, तो ये सर्विक्स खुलने का हम लोग ने डिस्कस किया ना। तो पहला छोटे कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, फिर बड़े कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं। तो जब भी छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं तो सर्विक्स थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खुलता है, तो ये 5 सेंटीमीटर तक खुलता है, तब तक हम बोलेंगे अर्ली लेबर है, मतलब हाफ वे थ्रू आ रहा है। तो इसके लिए बहुत टाइम जाएगा, राइट। इधर से लेके 5 सेंटीमीटर तक खुलने के लिए आधा दिन भी निकल सकता है, राइट। फ्रॉम 6 सेंटीमीटर्स टू 10 सेंटीमीटर्स ये यूजुअली 4 घंटे के अंदर खुल जाता है, राइट, क्योंकि ये टाइम में यूट्रस जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब बिगर कॉन्ट्रैक्शंस, 40 सेकेंड्स टू सवा मिनट के कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं। और शुरुआत में कैसा था, 15 मिनट में एक बार आता है, 10 मिनट में एक बार आता है, 5 मिनट में एक बार आता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्शंस दूर दूर आ रहे हैं। अभी एक्टिव स्टेज में क्या हो रहा है, नजदीक नजदीक आ रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्शन आ गया, 2 मिनट गैप, वापस एक कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। तो ऐसा 2-2 मिनट के गैप में आते रहते हैं कॉन्ट्रैक्शंस, तो सर्विक्स फटाफट खुलते हैं, इसलिए इसको एक्टिव लेबर बोलते हैं, एकदम एक्टिव रहता है लेबर। तो हमको भी ये टाइम में एक्टिव रहना रहता है, वी विल सी दैट लेटर। ओके, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग कि थ्रू आउट योर लेबर क्या हो रहा है, अपना सर्विक्स जो है, ये है सर्विक्स। हाँ, तो ये थैली का मुंह है, जो मोटा है वो धीरे 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 स्ट्रेच हो रहा है। हम लोग ने डिस्कस किया ना कि प्री लेबर कॉन्ट्रैक्शंस अच्छे हैं, क्योंकि उधर से भी वो धीरे धीरे स्ट्रेच होने लगते हैं कि लेबर के टाइम में सर्विक्स और फटाफट खुलने को चालू हो जाए, कि हमको लेबर में टाइम कम हो जाए, राइट। तो बीइंग एक्टिव इन द 9th month ऑल्सो हेल्प्स इन स्ट्रेचिंग द सर्विक्स वेल, कि आपको लेबर में टाइम कम बिताना पड़े और जल्दी जल्दी आपका लेबर हो जाए। ओके, तो ये सर्विक्स धीरे धीरे खुलता है अर्ली लेबर में। एक्टिव लेबर में मतलब फ्रॉम 5 सेंटीमीटर्स टू 10 सेंटीमीटर्स फटाफट फटाफट खुलता है, एंड एक्टिव लेबर इज फॉर अ लेसर टाइम, 2 से 4 घंटा ही रहता है। अर्ली लेबर इज फॉर अ लॉन्ग टाइम, आधा दिन, कभी कभी एक दिन भी निकल जाता है अर्ली लेबर में। इसके लिए अर्ली लेबर में हमको बहुत जल्दी हॉस्पिटल में जाके नहीं बैठना है, हमको जाना है जब भी 5 या 10 मिनट के अंतर में आपके कॉन्ट्रैक्शंस रेगुलरली आते रहे, ठीक है। ओके, तो अर्ली लेबर में हम क्या करेंगे, तो अर्ली लेबर में एज वी डिस्कस हम घर पे रहेंगे या फिर हॉस्पिटल में रहेंगे, जिधर भी रहेंगे हमको फोकस करना है रेस्ट में, स्लीप, क्योंकि ये टाइम में ऑक्सीटोसिन जो इंपॉर्टेंट हार्मोन में लेबर के लिए, तो दैट हार्मोन इज स्लोली बिल्डिंग अप इन द बॉडी, धीरे धीरे ज्यादा मात्रा में अपने बॉडी में रिलीज हो रहा है। तो जब भी मात्रा ज्यादा होता है अपना कॉन्ट्रैक्शंस भी स्ट्रांग होते हैं, और ये ऑक्सीटोसिन अच्छे से बढ़ने के लिए रेस्ट हेल्प्स। अगर आप सोएंगे या रूम को अंधेरा करके रेस्ट करेंगे, राइट, or even if you don't feel sleepy, you're just listening to music, इससे हम शांत होते हैं। और you can have a massage, or you are watching a funny movie, right, or reading something which you enjoy, और एकदम रिलैक्स कुछ बोर्ड गेम खेल रहे हैं, तो ऐसा करने से हमारा माइंड एंड बॉडी रिलैक्स रहता है, ऑक्सीटोसिन ज्यादा बढ़ता है। ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अपने आप से अच्छे से स्ट्रांग होते हैं, देन फटाफट फटाफट योर सर्विक्स विल ओपन, यू आर गोइंग टू डिलीवर फास्टर।
right? So that is why early labor में you should not tire yourself out. You should rest well, relax your mind and body, ताकि ऑक्सीटोसिन का मात्रा बढ़ जाए, आपका एक्टिव लेबर और एक्टिव हो जाए. ओके, तो अपना यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कैसा रहता है? तो एक कॉन्ट्रैक्शन आता है, इफ यू सी इट लुक्स लाइक वेव्स. ये जो रेड कलर का लाइन है दैट इज द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. वो तो वेव्स के जैसे दिख रहे हैं. एक वेव आ रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर सब खत्म, कुछ भी नहीं है. दैट इज द रेस्ट पीरियड. तो एक कॉन्ट्रैक्शन और दूसरे कॉन्ट्रैक्शन के बीच में यू डोंट फील एनीथिंग, कुछ नहीं है, सब एकदम मस्त है. फिर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन वापस आता है. तो आपको हमेशा मालूम पड़ेगा, हाँ अभी कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, अरे ये मैक्सिमम है, अभी नीचे आने वाला है, हाँ आता है, आता है, आता है, नीचे आ गया, अभी खत्म हो गया, हाँ अभी कुछ नहीं, 2 मिनट कुछ नहीं रहेगा, यू नो दैट, राइट? तो एकदम प्रेडिक्टेबल रहता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. तो हम रेडी हो सकते हैं, राइट? अगर आपको कुछ खाना है, वॉशरूम जाना है, ये बीच के टाइम में ये सब कर सकते हैं. दैट हेल्प्स, क्योंकि आपको थोड़ा खाना चाहिए, आपको फ्लूइड्स लेना चाहिए, इससे हाइड्रेशन अच्छा रहता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस अच्छे जाते हैं. अपना ब्लैडर को घड़ी घड़ी एम्प्टी करके आना चाहिए, क्योंकि फुल ब्लैडर रहता है फिर हमको समझ में नहीं आता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से पेन आ रहा है कि ब्लैडर फुल होने से पेन आ रहा है. और जगह की कंपटीशन है, यूट्रस भी उधर ही है, ब्लैडर भी उधर ही है. ब्लैडर फुल हो गया तो बेबी को सर नीचे आने में और डिले हो सकती है. तो ब्लैडर को खाली रखना है बाय एवरी 1 आवर विजिटिंग द वॉशरूम. और इस दौरान आपको थोड़ा मोबिलिटी भी मिलेगा, थोड़ा उठेंगे, बिस्तर में लेटे नहीं रहेंगे, उठेंगे, थोड़ा चल के आएंगे, वो सबसे बेनिफिट है. ओके, तो बहुत लोगों को ये डाउट रहता है, लेबर में मुझे पेन किधर होगा, मैं थोड़ा प्रिपेयर हो जाऊं कि मेरा पेन किधर रहेगा. तो ये पिक्चर ए, इसमें आप देख सकते हैं कि दीज आर दी रेड एरियाज वेयर यू विल गेट पेन, यू नो, माइल्ड टू मॉडरेट डिस्कम्फर्ट रहेगा, राइट? तो ये जो ग्रे पोर्शन जो रहेगा ये एकदम हल्का है. तो लेबर के बिगिनिंग में आपको पेट में दुख सकता है, बैक में दुख सकता है, या थोड़ा साइड में दुखता है, राइट? पर ये पूरा कमर के एरिया में थोड़ा डल एकिंग लगता है, जैसा पीरियड्स में होता है. ओके, जैसा जैसा अपना लेबर इंटेंसिफाई होता है, मतलब एक्टिव लेबर में जब भी आपके कॉन्ट्रैक्शन 40 सेकेंड्स टू 1.25 मिनट के होते हैं, 2-2 मिनट में एक एक कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, काफी इंटेंस है, तभी देखो किधर है, यू गेट इंटेंस पेन हियर बेली में. तभी ये लोअर पोर्शन ऑफ द बेली में इंटेंस पेन जाता है, और आपके पूरा कमर के एरिया में थोड़ा माइल्ड टू मॉडरेट पेन रहता है, और लाइट पेन रहता है आपके थाइज में. सो यू गेट टू अंडरस्टैंड कि लेबर के टाइम में थोड़ा थाइज में, बटक एरिया में, ये सब में भी पेन आता है, राइट? ये सब कभी हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि थैली का मुंह खुल रहा है. थैली का मुंह खुलने के टाइम ही पेन ज्यादा है. अभी ये पिक्चर में देखिए, इसमें दिस इज एट द टाइम ऑफ बर्थ, आप डिलीवरी रूम में हैं, सर्विक्स पूरा खुल गया है. सो अभी द पेन इज नॉट हियर, ये एकदम माइल्ड पेन ही थोड़ा सा ही है. पर आपका इंटेंस सेंसेशन किधर आ रहा है? अराउंड द बर्थ कैनल पैसेज, क्योंकि वो स्ट्रेच हो रहा है, बेबी बाहर आने के वजह से स्ट्रेच हो रहा है, तब भी पेन है. सो इससे हमको एक चीज क्लियर समझ में आता है, इट इज नॉट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस विच इज पेनफुल. तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन पेनफुल रहेगा तो पूरा पेट के ऊपर से पेन आना चाहिए ना. ये जो थैली का मुंह जो खुल रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, इसके वजह से हमको पेन फील होता है. और ये जो थैली का मुंह जो खुल रहा है, अगर हम बॉडी स्टिफ करेंगे, जैसे कि अगर आपको ये क्लियरली समझना चाहिए तो डॉक्टर आपका इंटरनल एग्जामिनेशन जब भी करते हैं तो हम कैसा स्टिफ कर देते हैं. अगर ऐसा हम स्टिफ करेंगे तो डॉक्टर एग्जामिन नहीं कर पाते, क्योंकि कड़क रखते हैं.
तो डॉक्टर बोलते हैं ब्रीथ करो, रिलैक्स करो, बॉडी ढीला करो, देन द डॉक्टर कैन एग्जामिन यू बेटर। एग्जैक्टली द सेम वे अगर लेबर के टाइम में अगर अपने बॉडी बहुत स्टिफ रख लिया है तो हमारा बॉडी भी स्टिफ रहता है, अलॉन्ग विद दैट अपना थैली का मुंह भी स्टिफ रहता है कि बेबी जैसा डॉक्टर फिंगर अंदर नहीं डाल पाए वैसा बेबी बाहर नहीं आ पाता है। तो कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रांग होने के बावजूद भी थैली का मुंह खुलता नहीं है। तो थैली का मुंह खुलने के लिए और फॉर द पेन टू बी लेस हमको बॉडी को रिलैक्स रखना है, लाइक अ रैग डॉल, ढीला छोड़ना है, स्टिफ नहीं रखना है। फेस टाइट, हैंड्स टाइट, बॉडी टाइट, सर्विक्स ऑल्सो टाइट। ओके, तो ये पिक्चर से आपको ये क्लैरिटी मिलेगा कि इट इज नॉट दैट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से पेन आ रहा है, इट इज बिकॉज द सर्विक्स इज ओपनिंग। और इधर जैसा सर्विक्स फुल ओपन हो गया, यू डोंट फील द पेन एनीवेयर हियर, इट इज ओनली द स्ट्रेचिंग सेंसेशन ऑफ द प्राइवेट पार्ट जब भी आपका बेबी बाहर आता है। ओके, तो इससे हमको समझ में आता है कि हमको लेबर को कैसा मैनेज करना है ना। तो हमको लेबर को मैनेज करना है बाय कीपिंग आवर बॉडी रिलैक्स्ड। रिलैक्स मतलब ढीला, बॉडी ढीला रहना चाहिए, ऐसा फेस को ऐसा टाइट, हाथ को स्टिफ नहीं रखना है। तो ये रिलैक्स होने के लिए अपना बॉडी मसाज हेल्प्स, वी ऑल नो दैट, है ना। तो कभी आप स्पा में जाते हैं या पार्लर में जाते हैं, बैक को मसाज करते हैं, फेशियल मसाज करते हैं, हेड मसाज करते हैं, कितना अच्छा लगता है। जब ये ऑफिस का पूरा टेंशन था, हेडेक होता था, नेक स्टिफ होता था, वो सब क्लियर हो जाता है। द सेम वे लेबर के टाइम में जो हमारा पेन के वजह से स्टिफनेस जो बॉडी में आता है, मसाज करने से वो क्लियर होता है। तो इसके लिए यू विल नीड हेल्प, राइट। हम अकेले अपने आप थोड़े कर सकते हैं। तो आपके हस्बैंड है या मम्मी है, किसी को आपका लेबर पार्टनर बनाना है जो आपको हेल्प करेगा लेबर के टाइम में, आपको ये सब मसाज करा सकता है, राइट। तो ये WHO का मानना है कि लेबर पार्टनर साथ में रहने से लेबर में कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। तो दे आर नॉट अ मेडिकल पर्सन, ऑब्वियसली अपने हस्बैंड या मम्मी मेडिकल पर्सन नहीं है, पर जो कोई अपने साथ रह के आपको मसाज करेंगे, आपका बॉडी ढीला रहने के लिए हेल्प करेंगे, इससे अपना लेबर स्पीड अप होता है, नॉर्मल डिलीवरी का पॉसिबिलिटी बढ़ता है, सी सेक्शन का चांस कम हो जाता है, हमको कम पेन फील होता है कि पेन किलर की जरूरत, एपिड्यूरल की जरूरत नहीं लगती है, एंड कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। तो यू शुड हैव योर पार्टनर अलोंग विथ यू, राइट। और लेबर में हम अलग अलग पोजीशन ले सकते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि लेबर में मैं लेटी रहूंगी, नो, आपको किसी ने बेड से बांध के नहीं रखा है, फील फ्री टू मूव, आप चल सकते हैं। बीच में पेन आएगा तो दीवार में लीन कर सकते हैं या आपके लेबर पार्टनर के ऊपर लीन कर सकते हैं, चेयर में बैठ सकते हैं। अगर आर्म रेस्ट के बिना वाला चेयर है, जैसा डाइनिंग चेयर है, उसमें उल्टा बैठ के उसमें लीन कर सकते हैं, या फिर बेड में आप नीलिंग करके रेस्ट कर सकते हैं, चेयर में बैठ सकते हैं, रॉकिंग चेयर में बैठ सकते हैं। अगर लेटे भी रहना है तो करवट में लेटेंगे, वो भी लेफ्ट साइड में लेटेंगे, जिससे बेबी का ब्लड फ्लो अच्छा जाता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना हम कम लेटेंगे लेबर स्पीड अप होता है, राइट। लेबर का टाइम कम होता है क्योंकि ग्रेविटी विल हेल्प अस। तो यू कैन सी हियर, अगर हम लेटे रहेंगे ना, तो ये येलो लाइन जो है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, और ये ग्रीन लाइन जो है ग्रेविटी है। अभी देखिए, ग्रेविटी तो ऐसा आ रहा है, यूट्रस बेबी को ऐसा पुश करने को जा रहा है, तो ग्रेविटी हमको हेल्प नहीं कर पा रहा है। अगर आप खड़े रहते हैं या बैठते हैं, मतलब अपराइट पोजीशन में रहते हैं, ग्रेविटी भी ऐसा जा रहा है, यूट्रस भी ऐसा जा रहा है, तो डबल बेनिफिट। तो थैली का मुंह जल्दी खुलता है, हर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बहुत एफिशिएंट हो जाता है, हमको लेबर में कम टाइम बिताना पड़ता है और आपको लेस पेन फील होता है। विदाउट मेडिसिन ऑल्सो आपको पेन काफी कम लगता है ड्यूरिंग लेबर।
ठीक है। दूसरा जो है हमको क्या करना है, वी हैव टू यूज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब ब्रेथ होल्ड नहीं करना, वो ब्रीदिंग है। मतलब लेबर के टाइम में हमारा आइडिया ये है कि हम श्वास को रोक के नहीं रखें, क्योंकि कभी भी पेन आता है हमारा टेंडेंसी क्या रहता है, ऐसा ब्रेथ होल्ड करते हैं फिर छोड़ते हैं, ब्रेथ होल्ड करते हैं छोड़ते हैं। इससे क्या होता है, बेबी को बराबर फिर ऑक्सीजन नहीं जाता है। इससे फीटल डिस्ट्रेस बोलते हैं, मतलब बेबी का हार्ट बीट कम हो सकता है, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन फॉर सी सेक्शन। तो हम क्या करें, तो जब भी अपना कॉन्ट्रैक्शन, एक तो पोजिशन, सो विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, लेटे रहेंगे ज्यादा पेन होएगा तो बैठ सकते हैं, खड़े रह सकते हैं, चल सकते हैं, एंड योर पार्टनर वो साथ में रहेंगे, मसाज करेंगे, आपको पेन कम होगा, राइट। एंड ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मतलब हमको करना क्या है, अभी ब्रेथ होल्ड नहीं करना है। तो समझो आप बैठे हैं, आगे लीन करके बैठे हैं, और जब भी कॉन्ट्रैक्शन आता है होल्ड नहीं करेंगे, इंस्टेंट उफ 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 ऐसा कर सकते हैं, या फिर स्लोली इन थ्रू द नोज, ब्लो थ्रू द माउथ, इन थ्रू द नोज, ब्लो थ्रू द माउथ। ये सॉफ्टली करना है, कभी भी ऐसा जोर जोर से नहीं करेंगे, इससे चक्कर आता है, राइट। अगर ये सब नहीं जमता है, आप काउंट कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3, या फिर कुछ बोलेंगे, मम्मा मम्मा, बेबी बेबी, समथिंग यू कैन से। इससे ब्रेथ होल्डिंग नहीं होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है, हमको जोर से चिल्लाना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, रोना नहीं है, ठीक है। इसके साथ ब्रेथ होल्डिंग होता है, हमारा ब्रीदिंग हेवी हो जाता है, जो अच्छा नहीं है। तो ये रिलैक्स्ड ब्रीदिंग से हमको बहुत बेनिफिट मिलता है, राइट। तो वी हैव बीन डिस्कसिंग दिस, बॉडी स्टिफ करने से, मैंने आपको एग्जांपल दिया इंटरनल एग्जाम में, कैसा हमारा बॉडी टाइट होता है, डॉक्टर कैन नॉट पुट द फिंगर इनसाइड। द सेम वे लेबर में हम बॉडी टाइट करेंगे, बेबी इज नॉट एबल टू कम आउटसाइड इवन व्हेन द कॉन्ट्रैक्शंस आर स्ट्रांग। सो इंस्टेड ऑफ कीपिंग द फेस टाइट, हैंड्स टाइट, बॉडी टाइट, सॉफ्ट ब्रीदिंग करेंगे, फोरहेड रिलैक्स रखेंगे, हैंड्स को रिलैक्स करेंगे, यू कैन स्ट्रोक द बेली, या फिर ऐसा हाथ को ऐसा ही रख सकते हैं, रिलैक्स रख सकते हैं, कि अपना बॉडी ढीला रहे। ढीला रहेगा बॉडी तो थैली का मुंह भी रिलैक्स रहता है, यू फील लेस इंटेंस पेन एंड द सर्विक्स ओपन्स फास्टर, राइट। सो ये हमारा अभी हमको आइडिया आ रहा है ना, यू नीड टू हैव अ लेबर पार्टनर विथ यू, जो आपको लेबर के टाइम में हेल्प करेगा अलग अलग पोजीशन चेंज करने को, क्योंकि पोजीशन चेंज करेंगे और ज्यादा अपराइट रहेंगे, ग्रेविटी विल हेल्प यू, तो लेबर में कम टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। एंड वी आर गोइंग टू यूज मसाज फॉर पेन रिलीफ। तो इसके लिए आपको पार्टनर चाहिए, जिधर भी दुख रहा है उधर मसाज करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, बॉडी रिलैक्स होगा, लेस पेन, एंड वी आर गोइंग टू यूज ब्रीदिंग। ये सब इवन व्हेन देयर आर इंटरवेंशंस, कि लेबर में, हॉस्पिटल में हमारा डिलीवरी होती है तो लेबर को कभी स्पीड अप करना रहता है, जैसे कि ये लेडी को हाथ में आईवी चढ़ा रहे, फिर भी ये लेटे नहीं है, खड़े हैं, खड़े रहते हैं, मूव कर सकते हैं, एक जगह में ऐसा हिल सकते हैं, ये सब पॉसिबल है। कभी कभी क्या होता है, बेबी का हार्ट बीट मॉनिटर करना पड़ता है, जैसे कि ये दो लेडीज को इसमें स्ट्रैप किया है, हार्ट बीट का मॉनिटर, अगर मॉनिटर करना पड़ता है, उठ के तो चल नहीं सकते हैं, बट सी शी कैन सिट, सो दिस लेडी इज सिटिंग अप, कि कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, अपराइट पोजीशन ले रहे हैं,
अरे मुझे वो भी नहीं हो रहा है, मुझे लेटना है, तो भी लेफ्ट साइड में लेटे हैं। तो ये फायदेमंद है, इसमें बेबी का हार्ट बीट कम नहीं होगा, राइट। तो ये सब आप कर सकते हैं इवन इन द हॉस्पिटल, इवन व्हेन देयर आर इंटरवेंशंस हैपनिंग, मेडिकल इंटरवेंशंस के साथ भी उसको डिस्टर्ब किए बिना आप अपने आप को कंफर्ट दे सकते हैं। इससे आपका लेबर पेन कम रहेगा, लेबर फटाफट आगे बढ़ेगा, एंड यू विल बी एबल टू हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग वजाइनल बर्थ, उसका पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर ये सब काफी नहीं है तो आप आज पूछेंगे मेडिकल पेन रिलीफ के लिए, दिस इज एपिड्यूरल। एपिड्यूरल मांग सकते हैं एक्टिव लेबर में, मतलब आपका 5 सेंटीमीटर के बाद मांगेंगे, राइट। इसमें अनेस्थेटिस्ट आके देते हैं, आपके बैक में एक इंजेक्शन देते हैं और उसके थ्रू मेडिसिन डालेंगे, उससे आपको पेन रिलीफ मिलेगा, राइट। तो ये डाल के 15 मिनट के अंदर आपको पेन रिलीफ आएगा, और इसका बेनिफिट ये है कि आपको ड्राउजीनेस नहीं रहेगा, यू विल नॉट फील स्लीपी विद एपिड्यूरल। तो आप कोऑपरेट कर पाएंगे ना लेबर के टाइम में। इससे जो जिनको बहुत लंबा लेबर जा रहा है या फिर पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो ये बहुत यूजफुल है, राइट। एंड इससे कभी कभी थोड़ा पैर सुन हो सकता है, तो यू मे हैव टू बी ऑन द बेड, राइट, बट यू कैन कंटिन्यू विथ योर ब्रीदिंग सो दैट बेबी का ऑक्सीजन अच्छे से जाते रहे, राइट। So this is how it is working, and it will not usually give any long term side effects to the mother or the baby, right? But इसका आइडिया क्या है कि आपका नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, उसका पॉसिबिलिटी बढ़ाने के लिए ही एपिड्यूरल देते हैं, ओके। सो लेबर का एंड जो होता है विद द बर्थ ऑफ द बेबी, सो यू कैन सी हाउ दी आपका वजाइनल एरिया अच्छे से स्ट्रेच होता है, एंड देन द बेबी इज कमिंग आउट। हम लोग ने शुरुआत में डिस्कस किया था ना कि हमको पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करनी है, कीगल एक्सरसाइज करनी है, इस चीज के लिए करनी है, क्योंकि जब भी ये स्ट्रेच होता है, अगर इधर के मसल्स मजबूत रहते हैं लाइक अ स्ट्रॉन्ग रबर बैंड, वो स्ट्रेच को अच्छे से विथस्टैंड करेगा, राइट। सो देन आफ्टर द डिलीवरी ये वापस टाइट हो जाएगा, तो आपके मसल्स वापस दोबारा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो इसके लिए ये एक्सरसाइजेस प्रेगनेंसी में भी करेंगे, और आफ्टर डिलीवरी भी हम कर सकते हैं। तो हम लोग ने शुरुआत में जो डिस्कस किया ना, थर्ड स्टेज जिसमें प्लेसेंटा बाहर आता है, सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ द प्लेसेंटा। तो ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड, और इसके अंदर जो ब्लड जो रह जाता है आफ्टर द बेबी कम्स आउट, इसको ही कॉर्ड ब्लड जो कॉर्ड लाइफ में वो सेव करके रखेंगे फॉर बेबीज फ्यूचर के लिए, राइट। तो ये प्लेसेंटा है, जैसा प्लेसेंटा निकलेगा देयर विल बी सम ब्लीडिंग, बट द यूट्रस विल श्रिंक अगेन, अच्छे से श्रिंक हो जाता है। विद इन 2 to 3 days यूट्रस वापस पेल्विस के अंदर चला जाता है, उतना फास्ट श्रिंक होता है, एंड द श्रिंकिंग विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 40 days। इसके लिए जो पोस्ट डिलीवरी का जो पीरियड में ज्यादा एम्फोसाइज दिया जाता है, क्योंकि ये टाइम में इट इज स्टिल श्रिंकिंग, देयर इज स्टिल सम ब्लीडिंग हैपनिंग। पहले 10 दिन तक पीरियड जैसा थोड़ा हेवी फ्लो रहता है, उसके बाद धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है, बट इट टेक्स नियरली 40 days फॉर द यूट्रस टू श्रिंक एंड कम बैक टू इट्स नियर ओरिजिनल साइज, राइट। ओके, तो सी सेक्शन और वजाइनल बर्थ में क्या डिफरेंस है? तो वजाइनल बर्थ में तो बेबी नीचे से आता है, सी सेक्शन में दे मेक अ कट इन द बेली, अब्डोमिनल इसमें कट आता है, यूट्रस में भी कट आता है, देन द बेबी इज गोइंग टू बी डिलीवर्ड, राइट। तो उसका स्कार अगर देखेंगे तो आजकल देखिए एकदम थिन लाइन आता है, सो एस्थेटिकली इट इज मोर अपीलिंग। आप लो वेस्ट के कपड़े भी पहनेंगे, उसमें आपका स्कार नहीं दिखेगा, एंड इट इज मच बेटर। तो नेक्स्ट नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए भी ये स्कार इज सूटेबल। तो अगर एक बार सी सेक्शन हुआ, यू डोंट नीड टू थिंक दैट नेक्स्ट टाइम भी सी सेक्शन ही होगा, नॉर्मल भी हो सकता है, राइट। दिस काइंड ऑफ टेक्निक से आपका
नेक्स्ट टाइम का वजाइनल बर्थ होने का पॉसिबिलिटी रह जाता है, राइट? एंड आफ्टर डिलीवरी इट इज टाइम टू एक्सरसाइज अगेन एंड गेट फिट, right? Okay, so with this I conclude. So here there is a gift coupon from momsjoy.com. So ये इसको आप redeem कर सकते हैं. So whatever questions you have ना, you can put it in the chat box. I will answer all of them. Okay. So all the best, ladies. Now over to you, Swati. Swati, you are there? Yes, I am there. Thank you so much, Dr. Nigamaja. So, welcome, beautiful mamas to be. I am Swati Thoda. I am a certified diabetes educator and a certified lactation educator as well. I have been trying to guide women in their nutrition through term, rather pregnancy as well as during their lactation phase. And today I'm going to be helping you understand how breastfeeding is so important and how you can be very nicely preparing towards it. Okay? So here's and let's begin. Okay, I think this would be visible much better now, right? If you have any, yeah, thank you so much, Ashutosh. So mamas, if you have any queries, of course, we will wait towards the end. I will take your questions and Dr. Nigamaja will also answer your queries. In the meantime, you may also type your questions for Dr. Nigamaja. And just to brief you all, Dr. Nigamaja herself does exercise sessions, which you can definitely get in touch with her and learn individually as well. Okay, so let's go and understand how breastfeeding means to you and how we can be mothers who are comfortably able to breastfeed throughout after delivery time till as long as you wish to. So generally breastfeeding is a gift of nature to all mothers. Okay, and this is absolutely a fundamental truth. It is just for you to be sure that this happens. Okay, so what today we will be trying to cover broadly is what is right to eat during pregnancy, a very short entry understanding into that. Also, I'll try to help you understand what are the breastfeeding positions which may make you feel comfortable while you're nursing the baby. What is the correct latch so that the baby is able to attach well at the breast and successfully nurse, and try and understand why and how you can take care of the nipple and your breast. Okay, and of course the need to relax. So let's just go understand this. Fine. So जनरली कैसे होता है कि जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कई बार आप ऐसे सोचते हैं कि मुझे क्या क्या करना होगा. सो नॉर्मली ये आप बहुत कंफर्टेबली अंडरस्टैंड कर जाओ कि बॉडी की जो प्रिपरेशन है वो नेचुरल है. जैसे ही आपकी कंसेप्शन होती है, जैसे ही बच्चा पेट में रहता है, वैसे ही आपकी बॉडी नेचुरली ब्रेस्ट फीड करने के लिए तैयार होते जाती है. सो जो ब्रेस्ट के अंदर मिल्क बनना है या जो हार्मोन चेंज होके जो ब्रेस्ट में मिल्क बनने की जो तैयारी होती है, या जो हर अलग अलग हिस्सों में आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जहां की फैट स्टोर होता है, जो आपके लैक्टेशन के समय पर आपको काम आएगा, ये सारा जो स्ट्रक्चरिंग है या ये जो पैटर्न है वो बहुत नेचुरली अपने आप ले डाउन होता है. सो आपको ये चीजों में कोई भी तैयारी करनी नहीं होती. आपको क्या तैयारी करनी है, तो केवल दो चीजें. फर्स्ट थिंग कि आप अच्छे से नरिश करें, यानी आप अच्छे से खाएं पिए जिससे कि आपका वजन सही से बढ़े. ओके, व्हाट आई मीन बाय सही से बढ़ना इज कि ऐसे नहीं कि आप डबल खाएं. ओके, कई मॉम्स को ऐसे लगता है कि अगर हम प्रेग्नेंट है तो हमको डबल खाना खाना चाहिए, लेकिन डबल खाना पेट में रुकेगा नहीं. सही है ना? जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है और जैसे बढ़ते जाता है वैसे ही पेट के अंदर जितना खाना माता है वो कम जगह मिलता है. सो ऐसा नहीं है कि आप जैसे प्रेगनेंसी में एडवांस होते जाएंगे आप खूब सारा खा पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा. सो इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप सही वाला खाना खाएं, ना कि ऐसा खाते चले जाएं जो आपको हेवीनेस क्रिएट करे या जो जिसकी वजह से आपको डिस्कम्फर्ट होगा. करेक्ट. सो सही नरिशमेंट होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी बॉडी तो चलो सही नरिश होगी, आपकी बॉडी सही नरिश होने के कारण आपके बच्चे का ग्रोथ भी अच्छा होता है. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ये फैक्ट कि आप जब सही रहेंगे तो आपका बच्चा ऑटोमेटिकली सही रहने वाला. ठीक है. सेकेंड चीज इसके लिए क्या जरूरी है, जो डॉक्टर निगमजा एनीविचुअस अभी सिखा रहे थे, कि आपकी बॉडी बिल्कुल फ्लेक्सिबल और पेन फ्री रहनी चाहिए. सो ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी आपने एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए.
राइट. सो इसका सेशन ऑफकोर्स हम लोग 1 to 6 months वाले मॉम्स के लिए लेते हैं, लेकिन अगर आपको वो सेशन आपने अगर मिस कर लिया हो तो आप डेफिनेटली नेक्स्ट वीक हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है. सो दूसरा ये चीज है कि जैसे आपकी प्रिपरेशन तो चलो 2 चीज की होगी, और ये तीसरी चीज ये है कि आपको मेंटली और इमोशनली प्रिपेयर्ड होना है. क्योंकि कई बार क्या हम बौखलाते हैं कि ये ब्रेस्ट फीडिंग मैं सच में मैनेज कर पाऊंगी क्या, वेदर मेरी बॉडी में इनफ मिल्क बनेगा क्या, वेदर मुझे इतना जागरण करने के बाद कितनी मैं खुश रहूंगी. सो ये बहुत सारे नहीं क्वेश्चंस जब भी आने लगते हैं तभी आपको सही जवाब ढूंढने के लिए इस तरीके के सेमिनार जरूर अटेंड करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रोफेशनल गाइडेंस मिलता है, जहाँ की डॉक्टर्स और प्रोफेशनल डायटिशियंस या फिजियोथेरेपिस्ट, लैक्टेशन कंसल्टेंट्स वगैरह बात करते हैं, जिसमें आपको यहाँ वहाँ की अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं देके एकदम अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन मिलेगा. राइट. सो ये मेंटल प्रिपरेशन करते हैं तो आप क्या ढूंढते हैं इसमें? फर्स्ट थिंग ये जानते हैं कि आपको आपकी बॉडी के लिए क्या उपयोगी रहेगा. सेकेंड चीज है कि अगर आपने ब्रेस्ट फीडिंग कंफर्टेबली करना है और अच्छे लेंथ तक के लिए करना है तो आपकी बॉडी कैसे प्रिपेयर्ड होगी और आपकी कौन सी टेक्निक सही चलेगी. करेक्ट. इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप वो पोजीशन अभी फिलहाल उस पोजीशन को यूज करके देखिए कि आपको उतना कितना कंफर्ट मिलता है. इसीलिए इनिशियली जब भी आप सोचते हैं, सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो आप बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं बाय द टाइम द बेबी अराइव्स, और फिर वो कॉन्फिडेंस इज गोइंग टू हेल्प यू. राइट. सेकेंड चीज है कि जब आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, आपको ये सारा चीज पता है, तो आप खाली बेबी के आने की राह देखते हैं. मीन्स वेट फॉर द बेबी बिकम्स मोर इंटेंस. नहीं तो आप वरी करने में आपका समय चला जाता है, लेकिन यहाँ फिर आप बेबी की आव में बहुत खुश रहते हैं. करेक्ट. और जैसे डॉक्टर निगमजा ने बताया कि आपकी बॉडी कई बार ऑक्सीटोसिन रिलीज करते ही रहती है, जो आपको हैप्पीनेस वाला फीलिंग दिलाते रहती है. राइट. सो यहाँ पर स्पेसिफिक क्या है कि आपने मोटिवेटेड रहना है कि आप ब्रेस्ट फीड करें. दैट्स अबाउट इट. और अगर आपको ये कैसे होगा और किस तरह आप हैंडल कर पाएंगे इसकी अगर अंडरस्टैंडिंग है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं रहेगा इसके आगे. करेक्ट. सो 2 चीज इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट थिंग इज की इन्फॉर्म मदर, सेकेंड इज अ सकलिंग बेबी. ठीक है. अब आप सोचिए कि ये बच्चा जब बॉर्न होता है तो वो कैसे आपके साथ या ये जगत के साथ रिलेट करता है. तो 3 चीजें. एक है कि माँ का स्मेल, बॉडी का स्मेल है. थर्ड है कि माँ का स्पर्श, और सेकंड है कि माँ का स्पर्श, और थर्ड है कि जो बेबी की सकलिंग की जो एक्टिविटी है, जो उसके अंग पे आके सक करने की जो एक्टिविटी है, वो एक फिजिकल फिजियोलॉजिकल नीड है. तो वो बच्चा ऑलरेडी सीख के ही आया हुआ होता है. सो ये सारी चीजें बच्चों को सिखानी नहीं पड़ती है. बर्थ से ही वो अच्छे से, जैसे आप बेबी को अंग के नजदीक लेंगे वो ऑटोमेटिकली सक करना शुरू कर सकता है. सो you don't need to teach anything. The babies are learned prepared to feed immediately after birth. ठीक है. इसीलिए ये जरूरी है कि ये पैसिफायर्स ना यूज किए जाए. कई बार ऐसे होता है कि ये जो माँ का स्पर्श है या माँ की बॉडी की जो स्मेल है, ये बच्चे को अट्रैक्ट करती है. जो माँ अपने बच्चे को गोद में लेके अपने स्किन टू स्किन कांटेक्ट कराती है, इससे बच्चे की सिक्योरिटी बढ़ती है, उसमें नहीं कॉन्फिडेंस बना रहता है. लेकिन अगर कई बार ये हम अवॉइड करके हम अगर पैसिफायर्स यूज करें कि ज्यादा देर तक बच्चा अलग से रहे या ज्यादा रोए ना, इसके लिए अगर हम उसको चुप कराने के लिए पैसिफायर्स यूज करते हैं तो ये बच्चे को हम कम अपनी तरफ लेते हैं और ये बच्चा ये स्मेल, टच, कंफर्ट लेवल को मिस कर जाता है. सो इट्स इम्पोर्टेंट कि जितना आप आपके बेबी के साथ रह सकते हैं वो बच्चा हमेशा आगे चल के कॉन्फिडेंट बच्चा बनता है. उसकी IQ लेवल्स डेफिनेटली अच्छी होती हैं, क्योंकि मदर्स मिल्क से और क्या बेहतरीन हो सकता है. करेक्ट. सो यहाँ ये मायने रखता है कि बेबी जो ब्रेस्ट मिल्क लेता है वो केवल खाली फूड नहीं है. ऐसे नहीं कि उसका खाली पेट भरने के लिए वो फूड आता है. इट इज मच मोर देन न्यूट्रिशन. तो यहाँ आप जब ब्रेस्ट फीड करते हो तो आप बच्चे को प्यार देते हो, बच्चे को वार्मथ देते हो, उसको सिक्योरिटी देते हो. राइट. सो ये सारा चीज ब्रेस्ट फीडिंग के साथ ही चलता है. सो विच इज ऑल द मोर अ रीजन कि फीड तो चलो जो नरिशमेंट उसको मिलना है मिलेगा ही, लेकिन ये जो समय है, जो स्पेशल प्रेशियस टाइम आप अपने बच्चे के साथ गुजारेंगे, ये शायद बाद में आपको नसीब नहीं होगा. सो इट्स वेरी क्रूशियल कि ये पूरा समय आप बिल्कुल खिलाते अपने बच्चे के साथ रहें. राइट. सो ब्रेस्ट फीडिंग ये एक चीज है जो कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाता है माँ और बच्चे के लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप के लिए.
और ब्रेस्ट फीडिंग ही एक चीज है जो आपको हमेशा ही जब कभी भी ध्यान आएगा तब आप इसके वजह से आप हमेशा ही एक प्रसन्नचित फीलिंग लेकर अपने आप में फील करेंगे। तो इसके लिए आपको ये क्या 3-4 चीजें जानना बहुत जरूरी है जो आज हम डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन आप कैसे बैठेंगे ताकि आप कंफर्टेबल हो और बच्चे को भी ब्रेस्ट सक करने में मुश्किल ना हो। दूसरा है कि बच्चा कैसे लैच करेगा, यानी किस तरह अंग के तरीफ किस तरह वो निप्पल को अच्छे से अपने मुंह में लेगा ताकि वो प्रॉपरली सक कर सके आपको बिना तकलीफ दी। थर्ड थिंग है कि हर फीडिंग के बाद आप उसको बर्प कैसे कराएंगे। और चौथा चीज है कि आप आपके ब्रेस्ट को कैसे केयर करेंगे। ये 4 चीज आपको जाननी जरूरी है एंड दैट्स वेयर वी अंडरस्टैंड। तो ये 4 स्पेसिफिक पोजीशन होती हैं कि जिसको हम क्रॉस क्रेडल बोलते हैं, को क्रेडल बोलते हैं, जो साइड लाइन पोजिशन है, और एक पूरा एक तरफ मुड़ने के बाद बच्चे को दूसरी तरफ भी लिटा के इस तरह भी साइड लाइन पोजिशन दे सकते हैं। लेकिन हम स्पेसिफिक कुछ पोजिशन को दिखलाते जाएंगे। वन इज द क्रेडल होल्ड, अदर इज द क्रॉस क्रेडल होल्ड। ये बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे के। तो मैं ये पिक्चर क्रॉस क्रेडल होल्ड का दिखाती हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग। ठीक है, ये जो पोजिशन है दिस इज द क्रॉस क्रेडल होल्ड। यहाँ पर क्या है कि बेबी का सर और माँ का ब्रेस्ट माँ का हाथ और बेबी का और माँ की ब्रेस्ट ऑपोजिट है। यानी अगर माँ ने लेफ्ट हैंड से बेबी का सर पकड़ा है तो वो राइट ब्रेस्ट पे बेबी को फीड करा रही है, इसलिए उसको क्रॉस क्रेडल बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ स्पेसिफिक आप 3-4 चीजें नोट करिए। माँ ने क्रॉस लेग करके रखा है, अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो आप लेग स्ट्रेट भी रख सकते हैं। दूसरा चीज है कि माँ एक बैकरेस्ट लेके बैठ रही है। बिल्कुल बिना बैकरेस्ट से बैठने से कई बार हमको दिक्कत हो सकती है, बैक में हर्ट हो सकता है। तीसरा चीज है कि बच्चा नहीं पूरा एक लाइन में है, यानी बच्चे का सर, बच्चे का कंधा और बच्चे के हिप्स एक लाइन में है। बच्चा पूरा माँ की तरफ टर्न हुआ है, करेक्ट। और यहाँ माँ ने अपने ब्रेस्ट को नीचे से इस सी शेप में पकड़ा हुआ है। इससे क्या होता है कि निप्पल इस तरह से प्रोट्रूड होके माँ अपने बच्चे को निप्पल करीब से दे सकती है। तो यहाँ क्या कंफर्ट लेवल क्या होता है कि बच्चे को निप्पल पकड़ने में भी आसानी हो जाती है, करेक्ट। और दूसरा क्या किया है माँ ने, ये बच्चे का हाइट निप्पल की तरफ सही आने के लिए उसने नीचे अपने गोद में एक थिक वाला पिल्लो ले रखा है। सो ये सारी 4-5 चीजें अगर आपने ध्यान से करी हैं तो डेफिनेटली कोई भी फीडिंग में मुश्किल नहीं होगी। एंड दिस इज अ क्रॉस क्रेडल। अब दूसरा जो पोजीशन है इसको फुटबॉल पोजीशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑफकोर्स देखिए माँ इसी तरह बैठी है बैकरेस्ट के साथ, लेकिन यहाँ बच्चे की पोजीशन देखिए कैसे है। यहाँ जो पोजीशन है हॉरिजॉन्टल है, माँ की गोद में पूरा बच्चा है। यहाँ पर माँ की गोद के ऊपर बच्चा नहीं है, बच्चा साइड में है। इससे क्या होता है कि अगर आपको सीधा पांव करके रखना है या अगर आपको क्रॉस लेग करके रखना है वगैरह, या आपको कुर्सी पे वगैरह बैठ के फीड कराना है, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ और एक बेनिफिट कैसे है कि आप पूरे आपके बच्चे को हग करके रखते हैं, यानी एक तरफ से आपने आपके बच्चे को पूरा प्यार से अंदर की तरफ ले रखा है और बच्चा आपकी स्किन को साइड से कनेक्ट कर रहा है। इसमें क्या माँ को अपने बच्चे का चेहरा पूरा कंप्लीटली दिख रहा है और आप ये भी देख पा रहे हैं कि उसका नाक वगैरह भी नहीं दब रहा है। तो कई बार ये पोजीशन कब यूज की जाती है, जबकि डिलीवरी के बाद तुरंत अगर माँ को एग्जैक्टली इस तरह क्रॉस बैठने में अगर मुश्किल हो रही है या पालथी मार के बैठना कभी मुश्किल हो जाता है, तो ये पोजीशन बहुत काम आती है। ठीक है, इसमें थोड़ा रिक्लाइन वाला जो पोजीशन अगर देखेंगे तो माँ इस तरह भी बैक रेस्ट ले सकती है। अब इसको लेट बैक पोजीशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि माँ ऑलमोस्ट लेटे पोजीशन में है, लेकिन उसकी बैक के लिए रेस्ट के लिए उसने नहीं एंगुलर पोजीशन लिया हो, पूरा फ्लैट नहीं लेटी है, लेकिन पूरे सर से लेके बैक को एक एंगल पोजीशन में लिया। इससे क्या होता है कि माँ को पूरे बैक को रेस्ट मिल रहा है। सो अगर बाय चांस किसी मदर को बैक पेन भी हो रहा है तब भी शी कैन कंटिन्यू फीडिंग द बेबी। और यहाँ बेबी को उसने कैसे लिया, अपने पूरा ऊपर अपने बॉडी के ऊपर ले लिया है, जहां बेबी कंफर्टेबली निप्पल को होल्ड करके सक कर पाए, राइट। सो ऐसा कभी भी नहीं होगा, आप क्या किसी भी टाइम आप ऐसे नहीं महसूस करेंगे कि आप बेबी को फीड नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी बैक हर्ट हो रही है, क्योंकि आप थक चुके हैं। जस्ट इन केस कभी आपको बहुत ज्यादा टायर्डनेस लग रहा है तो कई माँ साइड लाइन पोजिशन में भी ब्रेस्ट फीड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी
मैं ऐसे बतलाती हूँ कि अगर बच्चा बहुत ज्यादा छोटा है तो दिस इज अ बेटर पोजिशन टू फीड, नहीं तो द क्रॉस क्रेडल पोजिशन इज बेटर पोजिशन टू फीड, क्योंकि यहाँ अगर आपको नींद आ रही है तो आपको समझ में आएगा कि बच्चे ने सही लैच करा है कि नहीं, या कभी कभी ब्रेस्ट आपके बच्चे के मुंह को कवर कर सकती है। बट अगर आप जगे हैं या आपके साथ अगर रूम में कोई और है जो आपके साथ बैठे हैं, आप उनसे बात करते हुए या कोई आपको ऑब्जर्व कर सकता है, तब ये साइडलाइन पोजीशन लेना कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ आप देख रहे हैं कि बच्चे का मुंह किस तरह बिल्कुल अटैच्ड है, बच्चे ने निप्पल को अच्छे से अपने मुंह में पकड़ा हुआ है, राइट, और यहाँ बच्चे का नाक भी नहीं दब रहा है और बिल्कुल कंफर्टेबली माँ भी अपने ईज और कंफर्ट में बच्चे को फीड करा रहे हैं। सो यू नो ये सारे पोजीशंस अगर आप जान रहे हैं तो इम्पोर्टेंट है कि ये आप जब यूज करें तब आपको भी इसका कंफर्टेबिलिटी समझ में आएगा, राइट। तो कैसे है ना, आप जब ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कराते हैं आप जो पोजीशन में कंफर्टेबल फील करें उसमें शुरू करा सकते हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आगे चल के आप पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सो जिस तरह मदर और बेबी को अच्छा लग रहा है उस तरह आप पोजीशन चेंज करके फीड करा सकते हैं, ठीक है। अभी आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि अगर बच्चा सही से लैच किया है कि नहीं किया है, तो आप कैसे समझेंगे। आपको ये दो पिक्चर्स में डिफरेंस समझ आ रहा है। यहाँ देखिए जो मदर का एरोला है वो काफी हद तक पूरा बार है और बेबी ने केवल सिर्फ निप्पल ही अपने लिप्स से पकड़ा हुआ है। इससे क्या होता है, कई बार बेबी निप्पल को चबा लेता है और अच्छे से मिल्क जो ब्रेस्ट में से मूव होना है वो अच्छे से नहीं मूव होके बड़ा स्लो जाता है। तो इसमें नहीं, बच्चा बहुत चिढ़ता है और मदर को वो निप्पल का प्रेशर के कारण निप्पल में पेन हो सकता है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं बच्चे का पूरा लिप्स स्प्रेड है और ऑलमोस्ट एरोला पार्ट के साथ निप्पल बेबी के मुंह में है। यहाँ क्या होता है, ये ग्रिप अगर इस तरह से अच्छे से लिया हुआ है तो बच्चा जब सक करता है ना तो निप्पल को अच्छे से खींचता है। इससे क्या होता है, खूब सारा दूध एक ही टाइम के सकल से बच्चे के मुंह में जाता है और बच्चा आसानी से उसको गल्प कर सकता है। तो इसमें क्या बच्चे को कम एफर्ट से ज्यादा अमाउंट ऑफ मिल्क मिलता है। और यहाँ फिर क्या बच्चा अननेसेसरी निप्पल चबाएगा या उसके ऊपर निबल नहीं करेगा। तो इससे क्या माँ को भी कंफर्ट रहता है, फीडिंग का टाइम ड्यूरेशन आप लिमिटेड कर सकते हैं, फिर भी बच्चे को इनफ मिल्क मिल जाएगा। और इससे क्या है कि आपके बॉडी के जो हार्मोन्स है वो भी अच्छे से जनरेट होंगे, तो मिल्क प्रोडक्शन भी बिल्कुल सही से बना रहेगा। अगर यहाँ बच्चा बहुत निबल करके अगर कोशिश कर करके मिल्क ले रहा है तो कई बार मदर थक जाती है, क्योंकि बहुत समय लगता है बेबी को फीड कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। सो जब आप लैच करने जाएंगे तो कैसे, देखिए मैंने जो सी पोजीशन बोला ना, इसीलिए मैंने ये पिक्चर लगाया कि ऐसे मदर ने हाथ में पकड़ा है जिससे कि वो निप्पल थोड़ा प्रोट्रूड कर पाए। और जैसे ही बेबी मुंह खोलता है वैसे ही माँ अपने बेबी को अपने दूसरे हाथ से निप्पल की ओर अंदर ले जाती है। इससे क्या होता है कि जो लैच है आसानी से बेबी पकड़ लेता और फिर कोई बिना दिक्कत के बेबी कंटिन्यूस सकल कर पाता, ठीक है। देखिए इसमें इसी तरह का पोजीशन है। यहाँ अगर बेबी सो रहा है तो आप कई बार सोचेंगे इसको उठाएं कि ना उठाएं, लेकिन अगर नहीं उठाएंगे तो बेबी इसी तरह रुका रहेगा। सो हल्का सा जब बेबी जगता है तो वो अच्छे से अपना मुंह खोलता है और निप्पल को इस निप्पल के साथ थोड़ा डार्क एरिया भी अपने मुंह में ले लेता है। इससे क्या ये लैच कंफर्टेबल और कंप्लीट परफेक्टली हो जाता है। और कई बार आप जानेंगे कि एक बार अगर बेबी अच्छे से पीने लग जाए, उसके बाद कुछ दिन निकल गए तो ये मदर और बेबी का इक्वेशन सेट हो जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग पैटर्न सेट हो जाती है। कई बार बेबी निप्पल मुंह में रखते हुए ही सो जाता है, तो वहां आपको जानना है कि निप्पल किस तरह सेपरेट किया जाए। तो आप आइदर एक छोटा अपना फिंगर लिप्स में से स्प्रेड करके लिप्स को पार्ट कर सकते हैं, या फर्स्ट फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर को भी लेके अगर लिप्स को हल्का पार्ट किया तो निप्पल आसानी से सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। सो मेन इसेंशियल्स अगर बोलेंगे तो क्या है, फर्स्ट थिंग आपने राइट टेक्निक सीखनी है कि कैसे ब्रेस्ट फीड किया जाए। सेकंड कि लैच सही से होनी चाहिए, नहीं तो मदर को कई बार डिफिकल्टी होती है और बच्चा जल्दी जल्दी थकता है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम। और जब बच्चा थकेगा तो नहीं, वो थोड़ा थोड़ा पिएगा और बार बार फीड मांगेगा। इससे क्या बहुत लेंथ ऑफ टाइम मदर का ऐसा लगेगा कि सारा टाइम बेबी को मुझे फीड करने में ही चला जाता है, करेक्ट। इट कैन बिकम वेरी टायरिंग, आपकी नींद खराब हो सकती है, क्योंकि वो बच्चा बार बार जग रहा है तो आप भी उसके साथ जगेंगे,
राइट। सो अगर आपकी टेक्निक सही है और अगर बच्चे का लैच सही है तो ये बहुत ही आसान हो जाता है फॉर द मदर टू मैनेज ब्रेस्ट फीडिंग जितना लेंथ ऑफ टाइम चाहिए। यू नो मोस्ट बच्चे 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, कई कई मदर्स 2-2 साल तक बिना झिझक के बच्चे को फीड करती है। क्यों? क्योंकि उनकी टेक्निक सही है, उनके बच्चे का ग्रिप सही है, सो दे आर कंफर्टेबल मैनेजिंग दैट, राइट। आप ये भी ध्यान में रखें कि मिनिमम ऑफ 15 मिनट सकलिंग टाइम देना है, क्योंकि हर बच्चा अपना हल्का हल्का सक करने के बाद जरा जरा रुकता है, वो कंटिन्यूअसली सक नहीं करते हैं। सो सकिंग टाइम को आप ध्यान में रखिए, ना कि कितना टाइम बेबी ब्रेस्ट पे लैच्ड, राइट। दूसरा ये कि जब भी एक साइड आप फीड कर रहे हैं तो उसको कंप्लीटली फीड होने दीजिए, मींस बच्चे को फुल फीड एक तरफ से लेने दीजिए, फिर उसको बर्प करिए। बर्प करने के बाद चाहे तो आप दूसरी साइड लगाइए, अगर बच्चा पीता है पीने दीजिए, अगर नहीं पीता है तो जबरदस्ती मत करिएगा। जैसे बच्चे का जैसे वीक्स बढ़ते जाएगा वैसे आप देखेंगे 6 हफ्ते, 7 हफ्ते, 8 हफ्ते होते हैं, उसके बाद एक तरफ का बेबी कंप्लीट करने के बाद दूसरा तरफ भी थोड़ा फीड लेने लगेगा। लेकिन इनिशियली दोनों साइड से ज्यादा फीड देने की चेष्टा मत करिए, क्योंकि बच्चे का स्टमक बहुत ही छोटा होता है। ओके, सो अगर हम ज्यादा भी देंगे तो वो उल्टी कर जाएगा। सो ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन आपको एक कटोरी भर के दूध आना चाहिए। सो इसका भी आप ध्यान रखिए कि आप पजल ना हो जाएं कि अगर कम दूध आ रहा है इनिशियली तो डोंट पैनिक। क्यों? क्योंकि बच्चे की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। ओके, देखिए मैं ये बताना चाह रही थी कि पहले दिन करीब करीब 1 चम्मच जितना दूध हर फीड के टाइम भी इनफ हो जाता है। अगर आपका बच्चा चलो आज के दिन पैदा हुआ है तो घंटे 1.5 घंटे के अंदर अंदर अगर आपने 1-1 चम्मच जितना फीड दिया दिन में स्प्रेड आउट करके, तब भी बच्चों के पेट के लिए इनफ हो जाता है। लेकिन डे 2 से थोड़ा ज्यादा लगेगा, यानी 3 टीस्पून जितना, 5 से 15 ml, तीसरे दिन पे 15 से 30 ml जितना। और जैसे जैसे बच्चा फीड करता जाएगा वैसे वैसे आपकी बॉडी वो रिस्पॉन्ड करेगी, वैसे वैसे ज्यादा दूध बढ़ते जाएगा। सो आपको क्या करना है, केवल बच्चे को अपने बॉडी से लगाना है और उसको सक करने का मौका देना है। आपके बॉडी के अंदर के हॉर्मोन्स इसी से बढ़ेंगे, और ये जो हॉर्मोन्स बढ़ते जाते हैं उसी से मिल्क का प्रोडक्शन भी बढ़ते जाता है। सो आप देख रहे हैं कि डे 4 को कैसे अमाउंट बढ़ रहा है, डे 5 को कैसे अमाउंट बढ़ रहा है, और इतना ही बच्चे का पेट में फिट हो सकता है। यानी आप ऐसे मत सोचिए पाव लीटर दूध एक बार में पी लेगा। गिव सम मोर टाइम। एक्सेस फीड देना इज नॉट राइट, सही प्रमाण देना और समय से देना इज वेरी गुड। और कई बार आप ये भी देखेंगे कि बच्चा क्लस्टर फीड करता है, एक ही टाइम हर कुछ टाइम के बाद फीड लेता है, फिर थोड़े घंटों के लिए फीड नहीं लेता है। तो ये जैसे बच्चे का ग्रोथ होता है, वो ग्रोथ फेज में इस तरीके का भी बच्चे का बिहेवियर हो सकता है। सो पैनिक ना होइए। अगर आप कहीं भी कंफ्यूज होते हैं तो आप किसी लैक्टेशन एजुकेटर से बात करें, जिससे कि आपका वरी सॉर्ट हो जाए। ठीक, अननेसेसरी पैनिक करने से क्या ब्रेस्ट फीड और ब्रेस्ट मिल्क और मदर की थिंकिंग कैपेसिटी और रेस्टफुलनेस सारा कुछ चेंज होता है, विच कैन बी हार्मफुल। ठीक है, सो ये कैसा है, ये स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट इस तरह होता है कि ये जो पेक्टोरल मसल है इसके आगे जो है सारा टिश्यू है, और ये जो सेल्स आप देख रहे हैं ना बड़े वाले, इनको एल्वियोलाई बोला जाता है। और ये एल्वियोलाई ही है जिसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन होता है। और हर एल्वियोलाई के साथ ये डक्ट लगा है जो कि निप्पल के बेस के ऊपर साथ आते हैं। ओके, सो जब बच्चा यहाँ एक टिप में लैच करेगा तो नहीं, बहुत हल्का हल्का दूध उसके मुंह में जाता है। लेकिन अगर बच्चे ने थोड़ा ज्यादा पोर्शन, निप्पल से थोड़ा ज्यादा पोर्शन मुंह में लिया है, तो इससे क्या होता है, ये पोजीशन पे बच्चा सक करेगा। करेक्ट। सो इससे क्या होगा, ये सारे डक्ट्स में से एक ही साथ बेबी के मुंह में दूध जाएगा। तो एक साथ ज्यादा दूध मिलने से बच्चा जल्दी फुल हो जाता है और मदर को भी कंफर्ट मिलता है। राइट। सो ये दो हार्मोन है जो मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क एक्सपेल्शन में काम आते हैं। सो जैसे ही बच्चा सक करने लगता है तो ये प्रोलैक्टिन रिलीज होता है फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये जो प्रोलैक्टिन है ये ब्रेस्ट में मिल्क बनाने में मदद करता है। और साथ ही साथ ये ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होता है, जो कि ऑफकोर्स हैप्पीनेस हार्मोन है, लेकिन ये ऑक्सीटोसिन आपके ब्रेस्ट से मिल्क बाहर निकलने में मदद करता है। तो ये दोनों ही हार्मोन एक साथ काम करते हैं। लेकिन जैसे ही मिल्क प्रिपरेशन शुरू होता है, वो कैसे होता है, जब बच्चा सक करने लगता है तब। सो पहले दिन जब भी आपकी डिलीवरी होती है, उस दिन पहले 5-6 घंटों के अंदर आप
बन सकता है उतनी बार बच्चे को लैच कराएं। इससे क्या होगा, 8 से 18 घंटों में आपको डेफिनेटली मिल्क दिखने लगेगा, यानी पहले ही दिन आपको ब्रेस्ट में मिल्क आ जाएगा। दूसरे दिन भी आप इसी तरह अगर लगे रहे तो मिल्क की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, फिर आपको कोई भी टॉप फीड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉलो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले प्रोएक्टिव रहें टू पुट द बेबी टू द ब्रेस्ट, बाद में बॉडी अपने आप नेचुरली मिल्क प्रोड्यूस करने लग जाती है। करेक्ट। इसके लिए स्पेसिफिक ये जानना जरूरी है कि बच्चा जब भी आप एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड देंगे तो आप जितना प्रोड्यूस करेंगे उतना बच्चे के लिए सफिशिएंट ही होगा, यू डोंट नीड टू वरी। सेकेंड थिंग है कि क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है कि जितना आप फीड करेंगे उतना ही मिल्क ज्यादा बनने लगेगा। सो यू नो अगेन यू डोंट नीड टू वरी। सिर्फ ये है कि आप अपने इंस्टिंक्ट पे ध्यान दिए। कई बार माँ को समझ आता है कि आज कुछ ठीक नहीं है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ गलत हो सकता है। यू सीक एडवाइस। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो एडवाइस लेना जरूरी है, फिक्र करने से कोई फायदा नहीं होता, राइट। और एक लास्ट चीज जो यहाँ मैं स्किप कर गई, इसकी आप आपकी ब्रेस्ट की केयर कैसे लेंगे। सो नॉर्मल जेंटल मसाज अगर करेंगे तो इससे क्या होता है, जो लिम्फ जो अराउंड द ब्रेस्ट टिश्यू के अराउंड जो लिम्फ जमा होता है वो ड्रेन हो जाता है, तो कोई पेन जनरेट नहीं होता है, ब्रेस्ट में बहुत हैवीनेस टाइटनेस नहीं हो जाएगा। अगर आप कई घंटों तक फीड नहीं करेंगे तो जो एल्वियोला है बहुत ज्यादा भर जाते हैं, बहुत ज्यादा टाइट हो जाते हैं, जिससे कि ब्रेस्ट में पेन होना चांसेस बढ़ सकता है। करेक्ट। सेकंड ये है कि जब निपल्स को आपको सही रखना है तो निपल्स को हल्का सा ल्यूब्रिकेट करके रखना पड़ेगा, जिससे क्या होता है कि आप आइदर कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं या आपका दूध ही यूज कर सकते हैं, जिससे कि ये निपल अच्छे से ल्यूब्रिकेट रहे और उसमें कोई फंगल इन्फेक्शन ना। तीसरा ये है कि बाय चांस कभी आपको कभी ऐसे लगे कि कहीं कोई लंप जम रहे हैं तो उस जगह पे सर्कुलर मसाज करने से और फिर निप्पल की ओर मसाज करने से ये लम्प्स वगैरह भी रिलीज हो जाएंगे, जिससे कि कोई पेन नहीं जनरेट होगा। ओके। अगर आप समझते हैं कि ये लम्प सही नहीं हो रहे हैं या ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं तो डॉक्टर से जरूर मिले, क्योंकि अगर ज्यादा देर लम्प रुक जाते हैं तो फीवरिश फीलिंग आने लग जाती है। ठीक है। चौथा है कि कई बार जब बच्चा निप्पल सही से नहीं ग्रिप करता है तो जिस एंगल में बच्चा फीड करते चले जा रहा है उस एंगल में निप्पल दबा हुआ आपको नजर आएगा जब बच्चा मुंह से निप्पल रिलीज करता है। इसका ये भी इंपॉर्टेंट जरूरी है कि देन आप आपकी टेक्निक या आपके बच्चे के होल्ड करने का या बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग का पोजीशन अगर आप चेंज करेंगे तो इससे डेफिनेटली अच्छा लैचिंग होगा और ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और ऑफकोर्स फिफ्थ चीज जरूरी है कि आप सही प्रकार का ब्रा यूज करें, ना कि अंडरवायर की बहुत टाइट जिससे कि आपके ब्रेस्ट में एनगॉज्ड हो जाए, बट बिल्कुल कि जो आपके ब्रेस्ट को सपोर्ट करे इस तरीके का ब्रा यूज करना पड़ेगा। ठीक है। जिसके टाइट स्ट्रैप्स हो, जो नीचे से आपको ब्रेस्ट होल्ड करने में मदद करें। और तीसरा कि अगर आप नर्सिंग ब्रा भी यूज अगर कर रहे हैं तो ऐसी यूज करें कि आपको पूरा ब्रेस्ट अवेलेबल हो टू फीड द बेबी। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट और भी चीज है कि अगर आप आपकी आर्म को भी एक्सरसाइज करते रहें, जैसे कि इस तरह की मूवमेंट्स हैं, शोल्डर मूवमेंट्स है, तो इससे क्या है जहां ब्रेस्ट है उसके अराउंड कहीं भी आपको पेन वगैरह नहीं डेवलप होगा। आपके अपर बैक, शोल्डर्स और बैक ऑफ द शोल्डर्स में भी आपको नेक में भी कोई भी पेन नहीं होगा ये आर्म एक्सरसाइज करने से। सो आप जरूर आपके फिजियोथेरेपिस्ट से ये सारी सीखें जिससे आपको कोई आगे चलते हुए फीडिंग कराने में दिक्कत ना हो। राइट। सो ये कुछ चीजें थी जो मुझे डेफिनेटली बतानी थी। और बेस्ट बेट इज इसीलिए आई एम वेरी हैप्पी कि आज आप ये सेशन ज्वाइन कर रहे हैं और आप इसमें पार्टिसिपेट करके ये सीखने की चेष्टा कर रहे हैं कि सही सीखें और सही अगर उसको उपयोग में लेके आए तो बेस्ट रहेगा। अभी आज जो जानकारी आपने ली है, अगर आप आपके पार्टनर के साथ बैठे हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं है तो आप डेफिनेटली इसके बारे में उनको बताइएगा, सो दैट हेल्प्स बोथ ऑफ यू ऑल टू बी अ पार्ट ऑफ योर प्रेगनेंसी जर्नी। एंड बाद में भी जब बच्चे को आप हैंडल कर रहे हैं, जब आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, तब भी दोनों साथ ही एक दूसरे को हेल्प कर पाए। करेक्ट। सो दैट वाज बेसिकली अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग। हैव अ सुपर ब्रेस्ट फीडिंग टाइम अहेड। मैं एक छोटा सा इंट्रो ऑल्सो दूंगी अराउंड द बेबी केयर। सो एक आधा सेकेंड रुकिए, मैं उस स्लाइड पे ले जाती हूँ। आपको इस पे कोई भी अगर प्रश्न है तो आप डेफिनेटली चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसको आंसर करते चले जाऊंगी। ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे ये छोटा सा बच्चा जो आपके हाथ में बॉर्न हुआ है, वही बच्चा इतना खिलखिला के आ रहा है
और वो खाली ये देख रहा है कि मेरी माँ कहाँ है। ओके, बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या होती है, उसकी माँ। उसको नहीं समझ आता कि आप उसके लिए क्या खरीद के आए हैं, आप उसको कहाँ बिठाने वाले हैं या कहाँ सुलाने वाले हैं, उसको ये चीज मायने नहीं रखती। उसको ये मायने रखता है कि मेरी माँ मेरे आजू बाजू में है, उसकी बॉडी की गंध, उसके बॉडी से टच, ये सारी चीजें बच्चे को बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप हमेशा ही अपने बच्चे के साथ बने रहिए, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। सो कुछ 4-5 चीजें हैं जो आपको बच्चे के बारे में अभी जाननी है, और इसीलिए ये मैं प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है। सो जनरली आप देखेंगे कि बेबी जब बॉर्न होता है तो उसके साथ साथ कई चीजें एकदम कैसे बोलते हैं, रूटीन सी होती है। जैसे बच्चा आपका एक छोटा अंश है। करेक्ट। सो आप जो चीजें दिन में करते हैं बिल्कुल उसी तरह की चीजें बच्चे के साथ, बच्चे की बॉडी में भी हो रही है। राइट। आपको भूख लगती है, आपको प्यास लगती है, आप सांस लेते हैं, आपके बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस होती है। ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग एक छोटे से एंगल में, एक छोटे से बॉडी में ये ही सारी चीजें हो रही है। करेक्ट। सो हमको इसको ही ध्यान में रखते हुए बच्चे के भी रूटीन को ध्यान रखना है। करेक्ट। सो आप देखेंगे जब बच्चा बॉर्न होता है उसके पहले 1 घंटे में वो बड़ा एक्टिव होता है। ओके। सो जब बच्चा बॉर्न हो गया, कई बार डॉक्टर तुरंत ही लेबर के बाद तुरंत ही बच्चे को मदर की चेस्ट पे डालते हैं। इससे क्या होता है, बच्चा माँ के स्पर्श, माँ के बॉडी की हीट को भी महसूस करता है, माँ की धड़कन भी सुनता है, तो वो कंफर्टेबल सिक्योर फीलिंग करने लगता है। और वो नहीं माँ के ब्रेस्ट की तरफ जाने की कोशिश करता है, जहां से वो उसको पता चलता है, क्योंकि जो एमनियोटिक फ्लूइड की जो गंध है और ब्रेस्ट मिल्क की जो गंध है सिमिलर होती है। सो बच्चा ऑटोमेटिक ब्रेस्ट की तरफ क्रॉल करने की कोशिश करके ब्रेस्ट को, निप्पल को लैच करने की कोशिश करेगा। ये ब्रेस्ट क्रॉल और ब्रेस्ट लैच के वीडियोस बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियोस यूट्यूब पे आपको देखने को मिलेंगे। आप ये सेशन के बाद जरूर ब्रेस्ट कॉल का वीडियो देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन है। आपको समझ आएगा कि कैसे बच्चा पैदा होते से ही कुछ मिनटों के अंदर ही अपने आप ब्रेस्ट की तरफ प्रयाण करके ब्रेस्ट सकलिंग की कोशिश कर सकता है। यानी इट्स अ फिजियोलॉजिकल रिफ्लेक्स, जो मैंने पहले बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग इज द फिजियोलॉजिकल रिफ्लेक्स। ठीक है। दूसरा है कि इस समय पे बच्चे को कुछ और न दिया जाए, ना शहद, ना शक्कर, ना कोई फॉर्मूला एक्सेट्रा, इस कोई चीज की जरूरत नहीं है। जितना बेबी सक करेगा ब्रेस्ट में उतना जल्दी मिल्क आएगा, और उतना ही जल्दी बेबी को जो बेस्ट कंपोजिट, जो बॉडी से बना हुआ मदर ने जो क्रिएट किया हुआ मिल्क है वो जल्दी बरामद होगा। राइट। सेकेंड थिंग है कि केवल ब्रेस्ट फीडिंग पे आप पूरे 6 महीने बच्चे को रख सकते हैं, बिना झिझक के, बिना पानी के, बिना कोई और एडिशनल फूड के, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क ही इनफ नरिशमेंट बच्चे के लिए दे सकता है फॉर द फर्स्ट फुल 6 मंथ्स। उसके बाद धीरे धीरे आप कुछ कुछ चीजें ऐड करते जाते हैं, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोलते हैं, बट उस समय भी आप ब्रेस्ट फीड कंटिन्यू रखते हैं। और जैसे जैसे आप एक चीज ऐड करते हैं बेबी के फूड में, वैसे वो वाला ब्रेस्ट फीड आप कम कर सकते हैं। सो इसका ये मतलब है कि जैसे बच्चा करीब 6 महीने के बाद 8 महीना 10 महीना, तब तक आप धीरे धीरे नए नए फूड्स उसको चखाते जाएंगे, वो खाते जाएगा। करीब करीब 10-11 महीने के टाइम पे मोस्ट ऑफ द बेसिक आइटम्स आपके घर में जो है वो बच्चा खाने लग गया होता है। करेक्ट। सो उसके बाद नॉर्मली धीरे धीरे ब्रेस्ट मिल्क की रिक्वायरमेंट कम होते जाती है, क्योंकि बेबी और भी एडिशनल चीज खाने लग जाता है। सो वहां तक है कि आप चाहे उतने लेंथ तक ब्रेस्ट फीड शुरू रख सकते हैं। राइट। दूसरा है कि जैसे आप नहाते हैं वैसे ही बेबी को नहाने का फीलिंग होता है। राइट। अगर हमने नहीं नहाया तो कितना टेरेबल वाला फीलिंग आता है, जैसे हमने नहा लिया तो एक वाव वाला फीलिंग आता है। राइट। एक बॉडी में कुछ अच्छा वाला फीलिंग आता है। उसी तरह बच्चे को भी नहलाना जरूरी है। अगर बहुत ज्यादा ठंडी का समय है या बहुत चिल्ड वातावरण है तो अलग बात है, उस दिन आप स्पंज भी कर सकते हैं, लेकिन बन सकता है तो हल्का क्विक नहलाना विल बी वेरी वेरी नाइस फॉर द बेबी। सो हर दिन आप कैसे, कौन सा पानी यूज करेंगे, तो वार्म वाटर यूज करेंगे, एकदम रगरगता गर्म पानी नहीं डालेंगे। आपको ये पानी का टेम्परेचर कैसे समझ आएगा कि बच्चे के लिए सही है, आप आपकी एल्बो से चेक करेंगे। अगर आप फिंगर से चेक करते हैं तो कई बार हमने बहुत ज्यादा गर्म चीज को टच करने की हमारी आदत होती है। मैं अगर दूध गर्म करती हूँ गैस पे तो मैं अपनी उंगली से कई बार चेक कर लेती हूँ कि गर्म हुआ है कि नहीं।
और वो काफी गर्म भी होने के बावजूद मेरा उंगली जलता नहीं है, तो मेरी आदत हो जाती है कई बार कि ये ज्यादा गर्म नहीं है। लेकिन बच्चे को इतना गर्म अगर पानी डालेंगे तो बच्चे की स्किन पे बर्न्स होने का चांस बढ़ सकता है, राइट। सो ये जरूरी है कि आप आपकी एल्बो से चेक करें, अगर उसमें चटका लगता है मीन्स इट इज वेरी हॉट। सेकेंड थिंग जो देखेंगे कि बेबी के लिए एक अलग टब यूज जरूर करेंगे, अलग मग्गा यूज जरूर करेंगे। आपके रेगुलर जो बकेट्स वगैरह हैं उसको आप बार बार कितनी बार धोएंगे, स्टरलाइज करेंगे, काम बढ़ सकता है। सो एक टब उनके लिए स्पेसिफिक रखा जाए। और ये भी आप ध्यान देंगे कि आप आपके नहीं, अगर सिंक आपकी बड़ी है तो इस तरह का टब भी मिलता है जहां आप कंफर्टेबली बच्चे को नहला सकते हैं, ना कि बाथरूम में जाके स्ट्रगल करके नहलाएं। इस तरीके के स्टूल्स भी आजकल मिलते हैं जिसमें आप बेबी को सीट के ऊपर बैठा के आप नहला सकते हैं, बाजू में स्टूल पे बैठ के। सो बहुत कंफर्टेबली बिना झिझक के अपने आप ये नहलाने वाला प्रोसेस कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा मजा भी आएगा। क्योंकि कई बार बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत गिगल करते हैं नहाते वक्त। सो यू शुड बी एबल टू एंजॉय दैट। किसी भी बेसिक माइल्ड सोप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि खूब सारा सोप नहीं लगता बच्चों को नहलाने को। एक बार आपने हाथ घसा और वो पूरा बच्चा उतने एक ही हाथ वाले साबुन से नहा लेता है, करेक्ट। सो बहुत सारा शैम्पू सोप लगाने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ ये स्पेसिफिक ध्यान रखेंगे कि बच्चे की आंखों के एंड्स को, उसके नोज या ईयर्स के ओपनिंग्स को आप कुछ ड्रिल वगैरह नहीं करेंगे। ट्राई एंड यूज जो आपके टॉवलिंग मटेरियल है ना, उसी से आप उसको वाइप करें, क्योंकि कुछ भी चीज इवन बर्ड्स अंदर डालने से हानि हो सकती है। और अगर जेनिटल्स को जैसे क्लीन करना है तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखें कि अगर बेबी गर्ल है तो उसको हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही साफ करा जाए। नीचे से ऊपर की तरफ साफ करने से कई बार कंटेंट्स वजाइना में फिक्स हो जाते हैं, विच कैन कॉज इंफेक्शन। डेफिनेटली ध्यान रखिएगा। तीसरा है कि आप मसाज करेंगे या नहीं करेंगे। नो, कई फैमिलीज ऐसे बोलते हैं कि नहीं नहीं मसाज तो करना ही है, मेरी दादी ने करी थी, मेरी मम्मी ने करी थी। बट अब का लेटेस्ट जो अंडरस्टैंडिंग है, पीडियाट्रिशियंस बोलते हैं मसाज करने की जरूरत नहीं होती। सो इसका मतलब ये भी है कि कोई तगड़ा मसाज बच्चों को नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा प्यारा सा एक कंफर्टेबल टाइप का मूवमेंट है जो कि आप खुद ही कर सकते हैं। सो इसलिए मैंने ये सारे पिक्चर्स भी नीचे लगाए हुए हैं कि आप अपने आप कैसे बेबी को मसाज कर सकते हैं, राइट। इसकी टेक्निक्स और इसके काफी सारे वीडियोस भी यूट्यूब पे हैं, आप डेफिनेटली देख सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल ध्यान रखिए, अगर बच्चा हंस रहा है और उसको मसाज करने में मजा आ रहा है तब जाके उसको मसाज करें। कई बच्चों को पसंद नहीं है टू हैव सो मच ऑफ टच एंड सो मच ऑफ रबिंग स्क्रबिंग, तो जस्ट लीव देम ऑन देयर ओन। अगर आप मसाज करते भी हैं तो बिल्कुल चिकटा वाला तेल वगैरह ना यूज करें, क्योंकि उसके लिए फिर बहुत सारा सोप लगाना पड़ेगा। बहुत सारा सोप लगाने से बच्चे की स्किन ड्राई हो सकती है, राइट। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि हल्का सा कुछ बेबी ऑयल या वैनिशिंग क्रीम जैसा कुछ यूज करें, जिससे कि आपकी हाथ अच्छे से मूव हो। अगर गर्मी का समय है तो हल्का पाउडर भी यूज किया तब भी चल जाएगा। और नहलाने के लिए आटा बेसन वगैरह का कुछ भी यूज ना करें, बेसिक एक हाथ सोप इज इनफ फॉर द बाथ, ठीक है। अब बेबी को आप डेकोरेट करेंगे कि नहीं करेंगे, यानी उसको कोई ज्यादा सूरमा, काजल, लिपस्टिक, कोल्ड क्रीम वगैरह लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, ठीक है। बहुत सारे मम्मीज को लगता है कि बच्चे को अच्छा दिखना चाहिए, वो काफी काजल का यूज करते हैं, काजल का टीका भी लगाते हैं, कई बार पफ भी यूज करते हैं। ये सारा बच्चे को डेकोरेट करने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप देखेंगे कोई भी बच्चा बहुत ही प्यारा लगता है बिना कोई मेकअप के, राइट। सो ये स्पेसिफिक ध्यान रखें, पाउडर हमको कहाँ यूज करना है, खाली ग्रॉइन के एरिया, ओके। जहां आप उसको डायपर डालते हैं वहां हल्का सा ड्राई वो एरिया रहे, इसलिए हल्का पाउडर यूज करेंगे। बाकी पूरे बॉडी पे खूब सारा पाउडर लगाना या उसको आंखों में काजल लगाना, ये सब कोई चीजों की जरूरत नहीं होती, ठीक है। दूसरा ध्यान रखें कि बच्चा क्योंकि दूध पीता है उसका नहीं, नेल्स बहुत जल्दी बढ़ रहा है, तो ये नेल्स को बार बार आपको ट्रिम करने के लिए आइदर एक ट्वीजर नहीं तो एक छोटा सा नेल कटर जरूर खरीदना है। क्योंकि ये नेल्स नहीं, क्योंकि बच्चा अपना हाथ बार बार अपने फेस पे, अपने बॉडी पे या मदर को फीड जब कर रहा है तब मदर के ब्रेस्ट को बहुत खरोचता है, तो ये कैन कॉज मोर स्क्रैचेस ऑन द बेबीज बॉडी। सो उसको जरूर आप ट्रिम करिए। और ये टंग क्लीनिंग मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कई मदर्स ने पूछा हुआ है ऐसे जब भी सेमिनार्स हुए हैं तभी कि मैडम बेबी के टंग के ऊपर बहुत सारा कोटिंग आता है, हमेशा ऐसे लगता है उसकी जीभ सफेद पड़ी है। तो ये नेचुरल है, राइट, क्योंकि बच्चा दूध ही पी रहा है, हल्का सा व्हाइट ये आता है। कई बार बच्चा ढकार लेता है तो हल्का सा दही टाइप का दूध मुंह में आ जाता है,
तो ये नहीं, उनके जीभ पे कभी कभी चिपक सकता है, बट दैट्स ओके, वो बट इट्स वेरी नेचुरल फॉर द बेबी टू डू दैट। बट अगर आपको ऐसे लगे कि बच्चे ने बहुत बार ऐसा कर्डल वाला दूध थूक दिया है या वॉमिट कर दिया है, तब जाके मैं भी एक आध बार एक मसलिन क्लॉथ लीजिए, और एक मेडिकेटेड ग्लिसरीन की बॉटल मेडिकल स्टोर से मिलेगी, उसको हल्का सा अगर आप वो क्लॉथ पे लेके आप बेबी का टंग क्लियर करने की कोशिश करेंगे तो वो साफ हो जाएगा। बट ये आप तभी करें जब जरूरत है, ये हर दिन हम जैसे कुली करते हैं वैसे ये टंग क्लीन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है। और 3-4 चीजें ये भी हैं कि आप बच्चे के लिए क्या खरीदेंगे, या आपने ऑलरेडी क्या खरीद लिया है, या आपके फैमिली ने आपको ऑलरेडी क्या गिफ्ट दे दिए हैं, ये सारा आपने ध्यान में रखते हुए ये एक जरूर करिए कि पहले एक बेबी शॉपिंग की लिस्ट बनाइए। सारा जाके तुरंत खरीदिए मत, अभी तो सारा ऑनलाइन ही मिलेगा। इस दौरान पैंडेमिक के समय तो ऐसे ही हम ज्यादा बाहर नहीं जाते, सो ये लिस्ट करिए कि कौन सी चीज डेफिनेटली आप यूज कर पाएंगे, वो ही खरीदिए, क्योंकि बहुत सारा लेने से वो पड़ा रहे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, पिछले 20 सालों से मैं इस तरह की सेशंस ले रही हूँ, और कई मम्माज आए हैं कि जब हम मैडम बेबी शॉप में गए तो बहुत सारी चीजें पसंद आ रही थी और सारी चीजें खरीदी, और फिर रियलाइज हुआ कि हम बाहर ही नहीं गए, हमने ये वाला ड्रेस तो पहनाया ही नहीं, हमने दूसरा 4 कुर्ताज वगैरह लिया था, वो कभी यूज ही नहीं हुआ, वो पहनाने से पहले ही छोटे हो गए। सो कई ऐसी चीजें होती है जो हमको इंस्टिंक्टिव बाइंग में पुश कर सकते हैं, क्योंकि सारा ही बहुत प्यारा लगता है। सो बी वेरी वाइज, कहीं भी दुकान नहीं चले जा रहा है, और ऑनलाइन कंटिन्यूस आप चाहे तब मंगा सकते हैं। सो रिलैक्स, जस्ट मेक अ लिस्ट एंड बाय थिंग्स विच आर नेसेसरी। सेकेंड थिंग यहाँ है कि मॉस्किटोज बहुत होते हैं अक्रॉस बोल रहे हैं तो अक्रॉस द स्टेट बहुत सारे मॉस्किटोज हैं। सो बी श्योर कि आप मॉस्किटो प्रिपरेशन जरूर करें, क्योंकि जो प्लग ऑन्स हैं वो इतना परफेक्ट हेल्प नहीं करते हैं। सो यू हैव टू बी श्योर कि आप मॉस्किटो की नेट वगैरह किस तरह और कैसे यूज करेंगे। तीसरा है कि बेबी को आप हमेशा दिन में कहाँ रखने वाले हैं, वो उसके बेडिंग का ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है। आप अगर गादी बना रहे हैं, या आप छोटा सा उसके लिए अगर क्रेडल के अंदर अगर बेड रखने वाले हैं, आप कुछ पालना बनाने वाले हैं, आप इस तरीके का झूले में उसको ऑल द टाइम सुलाने वाले हैं, तो ये सारी चीजें आपको पहले से प्लान करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये कैरिंग ऑप्शंस तो खैर थोड़े देर से ही आते हैं, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है 5-6 महीने का, और जब आप बाहर जाने लगते हैं तब ये कैरिंग ऑप्शंस यूज में आ जाएंगे, ठीक है। 2 लास्ट चीजें ये हैं कि वैक्सीनेशन जरूरी है, और वैक्सीनेशन आप कहाँ करवाएंगे, किससे करवाएंगे। सो नॉर्मली जब आप डिलीवरी के लिए जाते हैं तो एक पीडियाट्रिशियन होते ही हैं टू हेल्प द बेबी, और बेबी का स्कोरिंग करने के लिए रहते हैं। सो आइदर वही पीडियाट्रिशियन को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, या आपके एरिया में जो करीब में जो पीडियाट्रिशियन है उसको आप जरूर पहले एक बार मिलिए, इससे क्या आपका कंफर्ट बन जाता है। आप वैक्सीन के बारे में ज्यादा जानकारी भी ले सकते हैं उनसे कि कौन सी वैक्सीन कब देनी चाहिए, उनका एक चार्ट रहेगा, उसको आपने फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो जब भी बच्चा बॉर्न होता है तो पहले ये जो BCG जो है ट्यूबरकुलोसिस का वैक्सीन, OPV यानी ओरल पोलियो ड्रॉप्स, और हेपेटाइटिस B का एक शॉट, ये आपके हॉस्पिटल के डिस्चार्ज से पहले ही कर दिए जाएंगे। लेकिन उसके बाद वाले जो वैक्सीन है वो आप आपके पीडियाट्रिशियन के पास से उनके चार्ट के हिसाब से आप करवा सकते हैं। सो यू हैव टू फॉलो दैट चार्ट। तो एक थोड़ा ध्यान रहता है कि कितने समय के बाद आपका नेक्स्ट वैक्सीन है, उसकी डेट अगर लिखी है तो आपको याद रहेगा कि आप भूल ना जाएं कि वो डेट पे आपने वैक्सीन लेनी, ठीक है। और ये देखिए, ये बच्चा कितना प्यारा सा है, देख रहा है अपने डॉक्टर को वैक्सीन लगाता हुआ, और यहाँ ये डॉक्टर उसको नहीं फुसला फुसला के वैक्सीन दे रहे हैं, राइट। सो ये स्पेसिफिक है ना, बच्चे का जो आप फीलिंग्स देखेंगे आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली उनको समझ आ रहा है कि आप उनके साथ क्या करने जा रहे हैं, राइट। सो बी अवेयर ऑफ ऑल दिस। और ये 4 लास्ट चीजें जो हैं, फर्स्ट थिंग इज कि कई बच्चों को तीसरे दिन या चौथे दिन पे हल्का सा पीलापन नजर आता है, उसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं। लेकिन ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। नॉर्मली आप अगर अच्छे से ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, बच्चा अच्छा मिल्क ले रहा है, बच्चा का यूरिनेशन सही हो रहा है, और बच्चे को हल्का सा लाइट सनलाइट वगैरह दे रहे हैं, तो ये जॉन्डिस क्विकली पास हो जाता है। जस्ट इन केस कोई बिलिरुबिन लेवल ज्यादा आता है तो आपके पीडियाट्रिशियंस उनको एक फोटो लाइट में रखने की सलाह देंगे, विच इज गुड फॉर द बेबी, सो डोंट वरी, ओके। सेकेंड थिंग है कि बेबी स्टूल्स कितनी बार पास करेगा। अब ये तो कहीं भी लिखा नहीं है ना कि कितनी बार पास करेगा, राइट। लेकिन आपने ये ध्यान में रखना है कि अगर एक बेबी दिन में
जितनी बार फीड लेता है उतनी बार अगर स्टूल पास करता है तो देयर इज नथिंग टू वरी, क्योंकि वो बहुत छोटा सा स्टूल हो गया, जस्ट ऐसे ऊपर से पिया और नीचे से जरा गैस के साथ जैसे जरा सा स्टूल निकल गया, सो दैट इज नथिंग टू वरी। अगर बेबी 3-3, 4-4 दिनों तक भी एक भी बार स्टूल नहीं करता है तब भी देयर इज नथिंग टू वरी। ठीक है, सो दिस इज कि ब्रेस्ट फीडिंग के कारण ये दोनों ही एंड्स पॉसिबल होते हैं। लेकिन अगर बेबी ने जितना फीड ले रहा है उससे ज्यादा बार अगर स्टूल्स कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि वो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इससे माल नरिशमेंट भी हो सकता है। सो देन यू हैव टू चेक विद योर डॉक्टर कि ये इस तरह से हो रहा है, राइट। थर्ड थिंग आपको नोटिस करना है कि कई बार बेबी नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा है फिर भी वो रोते चले जा रहे हैं, यू डोंट नो व्हाट टू डू विद दिस बेबी। ये कोलिक बोलते हैं इसको, जहां बेबी को नहीं पेट में कहीं दर्द थोड़ा हो रहा होगा और वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि उसको क्या हो रहा है। ये कई बार अगर आपने अच्छे से बर्प नहीं कराया, अगर जो ढकार का जो हवा है पेट के अतड़े के वहां कहीं फंस गया तो बेबी को बहुत तकलीफ देता है। तो फर्स्ट थिंग आपने ये ध्यान रखना है कि हर फीड के बाद डेफिनेटली बेबी को बर्प कराया जाए। ठीक, बर्प कराने के बाद ही उसको सुलाएं। अगर आपको लगे कि 5, 7, 10 मिनट तक उसने बर्प नहीं किया है तो उसको थोड़ा करवट पे सुलाएं, क्योंकि कई बार बाद में बर्प आया तो वो वॉमिट की तरह थोड़ा सा नाक से वगैरह मुंह से बाहर निकाल सकता है, जो कर्डल्ड मिल्क है वो। सो हल्का साइड से सुलाया तो ज्यादा सेफ रहता है। और फोर्थ लास्ट चीज है वो क्राइम। अभी आप ये देख रहे हैं बच्चे कैसे रो रहे हैं अलग अलग स्टाइल में। अब ये रोने का महत्व क्या है, या ये रोने वाले बच्चे देख के आपको क्या लग रहा है? ये बच्चा देख के आपको लग रहा है कि ये बहुत परेशान है और बोल रहा है मम्मा प्लीज मेरे को उठा लो, है ना। और ये बच्चा देखिए बोल रहा है कि मेरे को अब भी पॉटी आ रही है मम्मा जल्दी हेल्प कर लो। और ये बच्चा वो बहुत कहीं तो कुछ उसको जरूर पेन हो रहा है इसलिए वो चिल्ला रहा है। सो आप देख रहे हैं कि कैसे अलग अलग टाइप की क्राई होती है। सो डोंट पैनिक। बच्चा जब रो रहा है तब वो आपको कुछ बतलाने की कोशिश कर रहा है। ट्राई एंड ऑब्जर्व, बी एन ऑब्जर्वेंट मदर, तो आपको समझ आएगा कि मेरा बच्चा कौन सी चीज के लिए कैसे रोता है एंड आप उसको जल्दी से हेल्प कर सकते हैं, राइट। सेकेंड चीज ये है कि बच्चा खूब रोता ही चले जाए, जैसे सांस छूट जाए, उतना तक मत रुके। यू नीड टू चेक विद योर डॉक्टर। बट हल्का हल्का रोना इज वेरी वेरी नॉर्मल। हर बच्चा थोड़ा सा दिन में रोता है या बहुत बारी दिन में रो सकता है। सो यू शुड ट्राई एंड लर्न कि वो क्यों रो रहा है। ट्रू। सो ये सारी चीजें और आपके पूरे न्यूट्रिशन के बारे में हम एक प्रोग्राम करते हैं विच इज कॉल्ड प्रेक्स्टार। और ये प्रेक्स्टार प्रोग्राम फिटरफ्लाई कंपनी से आता है। मैं वहां पर एक लीड हूँ, मैं प्रेगनेंसी प्रोग्राम और लैक्टेशन प्रोग्राम की लीड की तरह काम करती हूँ। सो ये प्रोग्राम का एक छोटा सा एक मिनट का वीडियो है जो मैं आपको दिखलाना चाहती हूँ। अगर आपको पसंद आता है और आपको ये प्रोग्राम कभी ज्वाइन करने का दिल होता है तो यू कैन डेफिनेटली मीट एंड कनेक्ट विद मी। ठीक है, एक ही सेकेंड इसको हम प्ले कर लेते हैं। Bringing life into this world is a beautiful experience, but it also comes with its fair share of fears and worries. And while your doctor takes good care of you and your baby, it is simply not possible for them to clear all your doubts and uncertainties when you are at home. This is where PregStar helps you with continuous nutritional and lifestyle coaching throughout your pregnancy. PregStar is a pregnancy care program that gives you personalized guidance with a team of nutritionists, physiotherapists, and psychologists. Whether it be your diet plans, exercise routine, stress management, or pregnancy complications, you constantly get reliable advice and scientific information from our PregStar coaches. You also get unlimited access to the Fitify Wellness app, where you will find guides and reminders about baby development, healthy eating, regular checkups, pregnancy exercises, childbirth training, lactation, and so much more. We also create a detailed and first of its kind nutrition report, through which we track all the micro and macronutrients essential for a baby's growth and development. As a mother always wants the best for the baby, we want what is best for you. And with PregStar, we take care of your physical and mental well-being while you go through the most beautiful time of your life. PregStar, for every mom to be.
Visit our website to know more or call today. So you can note this number. अगर आपको interest है तो you can definitely call this number. They will be able to reach back to you. ठीक है? Or you can connect with me on my number. So we can help you understand and learn more around pregnancy, lactation and more. Thank you so much. आपकी कोई भी questions अगर हैं तो आप please chat पे डाल दीजिए. We will start answering the questions. So वृंदा जी ने पूछा हुआ है कि do preterm babies face any difficulty in breastfeeding? Okay, so generally कैसे है ना, preterm babies अपने आप में एक थोड़े छोटे होते हैं. So छोटे बेबीज को ब्रेस्ट फीड करने में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है. So you have to be very patient. Second thing है कि वो सक करने जैसे जाते हैं तो वो सकिंग के बीच बीच में कई बार रुकेंगे. So that's also not a problem. आप जितना सकल करवाएंगे उतना ही, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि उतना ही ज्यादा मिल्क बनते जाएगा. इन केस आपको ऐसे लगता है कि ये बच्चा जल्दी थक जा रहा है तो आप थोड़ा सा मिल्क पहले ही एक्सप्रेस करके रख लीजिए और उसको सकल हो जाने के बाद वो मिल्क टॉप अप की तरह दे दीजिए. सो आप ब्रेस्ट फीड ही उसको टॉप अप की तरह देते हैं, जो कि उसको कोई भी उसके ग्रोथ में कॉम्प्रोमाइज ना दिखे. थर्ड थिंग ये है कि कई बार ये बच्चे क्योंकि बहुत छोटे हैं, आपको पकड़ने में कई बार थोड़ा दिक्कत हो सकता है. सो आप आपकी पोजीशन ऐसे रखें कि अगर सपोज आपको आधे घंटे से ज्यादा भी अगर बैठना पड़ गया किसी दिन तो आप कंफर्टेबली बैठें. सो यू शुड ट्राई एंड यूज आइदर अ फुटबॉल पोजीशन, नहीं तो मे बी अ लेट बैक पोजीशन जो मैंने बताया. तो जिससे कि क्या होगा कि अगर ज्यादा लंबा भी बैठे तब भी आपको बैक पेन ना हो और आप कंफर्टेबली फीड करा पाए. कैन वी हैव AC ऑन विद द बेबी? इफ यस, व्हाट टेम्परेचर इज ऑप्टिमम? सो AC ऑन जरूर रख सकते हैं. समय ऐसा है कि कई बार बहुत ज्यादा गर्म भी हो रहा है. सो एनीथिंग बिटवीन 25, 26 to 28 डिपेंडिंग ऑन आप कौन से एरिया से हो. अगर किस एरिया में बहुत ही ज्यादा गर्म है तो इवन 26 कंटिन्यूस टेम्परेचर रखने से कोई भी दिक्कत नहीं होता है. लेकिन जो ब्लास्ट है वो बेबी के ऊपर नहीं होना चाहिए. जो आपका जो एयर ब्लोअर है should not be exactly on the baby. आपका एयर ब्लोअर अलग डायरेक्शन में होना चाहिए जिससे कि रूम पूरा आपका ठंडा हो जाए, लेकिन बेबी को कोई डायरेक्टली वो ठंडा हवा उसके ऊपर ना जाए. That's, और बेबी के एक्सट्रीमिटीज यानी उसके हाथ और उसके पैरों के ऊपर मोजे या मिटन्स वगैरह पहना के रखें जिससे कि उसके हाथ पांव ठंडे ना हो जाए. Then the baby is good to go. ठीक है. अगर बहुत ज्यादा ठंडा वातावरण है तो उस हिसाब से आप टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रख सकते हैं कि वो वेल कंट्रोल्ड रहे. बार बार बहुत ठंडा ठंडा गरम ना. That's okay to use. बहुत लोग AC यूज करते हैं, so that's not too well. Okay. There is a question कि time between the feeds of the baby. So time between can be, as मैंने पहले ही बताया कि it can be usually around 2 hours, but you cannot initially time. कोई बच्चे ज्यादा सोते हैं, कोई बहुत उठते हैं. So you have to feed on demand. Initially demand से ही चलेगा. पहला 8 से 15 दिन you cannot time. बट उसके बाद धीरे धीरे एक शेड्यूल बन सकता है कि ब्रॉडली 2 घंटे का अंतर कभी 1.5 घंटे से 2.5 घंटे के बीच में वो मूव होते रहेगा. सो दैट इज द थिंग. यू कैन नॉट टाइम 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2, ऐसे कभी भी बेबी नहीं फीड करने वाला. करेक्ट. सो ग्रेजुअली आप देखेंगे जब छोटा बच्चा है तो कम अमाउंट ऑफ फीड जाता है तो उसको भूख भी शायद जल्दी लग सकता है. बट ग्रेजुअली जैसे बच्चे का टेकिंग का क्वांटम जैसे बढ़ते जाएगा तो वो पेट भी थोड़ा ज्यादा देर तक भरा रहता है तो उसकी सोने की लेंथ भी अच्छे होने लगती है. सो यू विल रियलाइज दैट विदाउट एनी मेजर प्रॉब्लम बेबी ऑटोमेटिकली जो 1-1.5 घंटे में पहले फीड लेते हैं अपने आप ही 2.5 घंटे तक जाएगा, अपने आप ही 3 घंटे तक के गैप पे चले जाएगा. और कई बार आप देखेंगे अगर रात के टाइम पे आपने अच्छे से फीड दिया है तो वो पूरा 4-5 घंटा सो के ही सीधा सुबह उठते हैं. सो दिस कैन हैपन इन से about 3.5 months के टाइम से लेके कई बार 4-4 घंटे में बेबी सो लेते हैं. सो यू डोंट नीड टू वरी टू वर्क अराउंड के एग्जैक्ट टाइमिंग का आप पैटर्न डालें, लेकिन सी टू इट के यू डोंट डिनाई अ फीड व्हेन द बेबी इज हंग्री. मींस वो बच्चा रोने लग जाए तभी तक अगर आप रुक जाते हैं दैट मींस आप लेट हो. देयर इज सम क्यूज व्हिच द बेबी विल स्टार्ट गिविंग यू. बच्चा इधर उधर ढूंढने लगता है निपल कहाँ पर है, अपना जीभ बाहर निकाल के बार बार कोशिश करता है कि इस पे कुछ गिर जाए. These are some cues which are necessary and which you will be able to understand. अगर आप ये cues फॉलो करते हैं तो आप सही टाइम से बच्चे को अंग पे ले सकते हैं.
अगर आप वो मिस कर गए और बच्चा ऑलरेडी चिढ़ने लग गया है और बिल्कुल अनकंट्रोलेबली रोने लग गया है, तब आप फीड देंगे तो वो बच्चा मुंह ही बंद नहीं करेगा, कैसे फीड लेगा? सो डोंट वेट टिल द बेबी क्राइज, बी श्योर कि आप टाइमिंग ऐसे मैनेज करें कि बच्चा हैप्पीली फीड लेने की तैयारी में, दैट इज द टाइम. Okay. Are there any special seminars available for C-section delivery? Since I have been informed beforehand that by the doctor that you are going to have a C-section. So Dr. Nigam definitely कुछ exercises और कुछ पूरा labor preparation sessions लेते हैं. You can definitely take her number and speak with her. She will be able to deliver a session for you separately. Okay. I had got disconnected in the middle of the session. Can I please get the details for 9th May? Also, if there are any pre-recorded sessions on the web, I can check out. I think you will have to connect with the cord banking company. I'm sure they will also want to speak to you regarding any more information about cord banking. They will be able to share a session with you because it is which they record, they will be able to save and share it with you. No worries, Pooja. I'm sure they will be able to help you with the same. Anything else that I am missing? Are there similar sessions for second trimester and what kind of exercises to do? So yes, okay, Pooja is left. So Right. you can, I'm sure you all enjoyed the session and we can definitely connect. If you all want to learn more about exercises, I'm sure you can join the other session as well. And if you are in need of learning more around your pregnancy, you can definitely connect with me on either of the numbers. Okay, thank you very much. All the best to you all. When is a parent born? When your world changes in a moment. Nani? Or when the moment is celebrated by all. When you start learning again. Or with a new role. Is it your child's first breath? Or is it just a feeling? Parents are born when they fulfill a responsibility. Your child's umbilical cord blood can provide protection from 80 life-threatening diseases. Keep it safe with Asia's largest stem cell bank. Cord Life. One chance, one choice.